we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ बेराम काजी है with his new look. Yes sir. बाल कटवा लिए तुमने. Succumb to the pressure. फैमिली पीछे पड़ी हुई थी कि शादी पे तो तुम्हारे लंबे बाल इंसान के बच्चे लग रहे हो यार. वैसे तो I miss my hair, but yeah, it's a decent haircut. Usually you know आप बाल कटा कर आते हो तो कोई हफ्ता एक लगता है सेटल होने में. तो मैं लकी हो गया हूँ कि शुरू से ही ठीक लग रहे हैं. हाँ, और प्लस आई टोल्ड हिम कि यार इतने भी छोटे मत कर देना ताकि थोड़े से हल्के से रफ टाइप लुक आ जाए शादी पे. Because I don't like that neat clean look man. It's not me. क्यों? I don't know. वो लाइनों वाले जो बाल नहीं कट कर आते वो मुझे it's not for me. अच्छा. और हाँ बाय द वे तुमने बाल तो नोटिस कर लिए मगर इधर ये मैंने इधर एक चेल्सी की हुडी पहनी हुई है बिकॉज लंदन इज ब्लू अगेन. ब्लू अगेन. अच्छा 15 गेम्स में ब्लू अगेन हो गया. Imposter Arteta's team has dropped points. अली ये Chelsea is now second on the table. ये बात नहीं आनी चाहिए बाहर. ये बात काट तो पहले भी सेकंड थी. हाँ मगर फिर भी अब तो पॉइंट्स गैप यार देखो बात हमने चेल्सी की नहीं करनी क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया की करनी है. Yeah, and what a match. At the Adelaide Oval ping ball test. What a half a match. हाँ मतलब the game lasted all of 6.5 sessions and Australia absolutely annihilated India. खत्म. 10 wicket win in Adelaide. Day night test जीत के सीरीज लेवल कर दी है 1-1 and it was an absolute masterclass by Australia. Seam bowling masterclass I would say. और इससे एक और चीज ये हो गई कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो क्वालिफिकेशन है ना वो और स्पाइस अप हो गई है. साउथ अफ्रीका भी जीत गया. मसाले पड़ गए. तू देखना वेलिंगटन में न्यूजीलैंड हारी so they're gone. Right? South Africa have swept Sri Lanka so they have one foot in the world test championship final. They're at the top. अब पाकिस्तान ने 2 मैच तो हराने नहीं उनको. ज्यादा गलती से एक मैच हरा सकते. ऐसी मुझे मुश्किल ही लग रही है. मुझे भी वैसे if I had to bet money on that series I would go 2-0 South Africa. But I mean you never know. They do have a or 1-0 South Africa. बारिश होगी. South Africa have an inexperienced batting lineup, right? So Pakistan could in theory capitalize on that. बट या तेरी शक्ल से मैं सहमत हूँ. कोई सीन कोई है नहीं. बट खैर यहाँ पे बीजीटी जो है वो काफी फायर अप हो गई है. फड्डे भी हो गए हैं. करेंगे सब चीजों की बात करेंगे बट आई फील लाइक द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज मिचेल स्टार्क. आई मीन पहला ओवर वो ही कराता है. पहली बॉल पे विकेट लिए तो हमें भी ओपन वहीं से करना चाहिए. बाय द वे ये चाय बहुत गंदी बनी. अच्छा मैंने भी ट्राई नहीं की मगर हाँ दिस वाज द थर्ड टाइम मिचेल स्टार्क स्ट्रक विद हिज फर्स्ट डिलीवरी इन अ टेस्ट मैच एंड दैट वाज एन अनप्लेएबल वन टू जयसवाल. माय गॉड दैट बॉल wasn't even the only unplayable delivery he bowled. Like that ball to Shubman Gill. Oh my god. सादी मैंने मुझे बता रहे थे कुछ कैलकुलेशंस करवा के आए हो. मैंने दोनों से पूछा. I asked Himanish and Varun कि give me the deets on this delivery because it seemed foolish, right? Good length से आगे पड़ी है. Generally वो zone तो बैट्समैन के लिए अच्छा है. They tend to capitalize, right? Fuller length पे. And it was 4.32 meters. तो foolish side पे ही थी. But it swung around 2.5 degrees and it seemed like 1.5 degrees. Wow. So it was actually unplayable and he sent Shubman Gill's middle pole for a vacation, right? Proper uproot kiya and Mitch Stark recorded career best figures. That's surprising. I was a bit startled as well. These are his career best figures. 6 for 48 in the first innings. He is the pink pill pulverizer. ये मैंने nickname शुरू में दिया था pink ball pulverizer and then Jared updated it. उसने कहा नहीं pink pill pulverizer has a better ring to it. PPP. हाँ and we're probably going to record footmarks on it at some point as well. और उसके बाद भी आकर यार 2 for 60 in the क्या कहते हैं second innings. 8 wickets in total. I felt Mitchell Stark was the player of the match. He set it up. He set the tone. He did set it up, लेकिन Travis Head की बहुत crucial runs. No doubt, मगर Stark ने वहाँ पे शुरू में destroy ना किया था इंडिया को और इंडिया के 300 हो गए होते. You don't know where this game would have gone, right? So I personally felt I did call Mitchell Stark the most dangerous bowler in this match, by the way, if you remember. Yeah, I mean, we in our preview mentioned how the pink ball test we would feature Mitchell Stark and he would be a big player in that क्योंकि यार उसका record ही pink ball के साथ शानदार है. He is the best ever bowler with the pink ball और when it comes to playing in Adelaide with the pink ball वो record और बेहतर हो जाता है. So there are a bunch of reasons for this. ठीक है. एक तो lacquer फर्क है pink ball पे. सही है. It tends to swing a bit more and Stark isn't a conventional swing bowler. He's not a Chaminda Vaas for example, right? But with the pink ball he swings it heaps. और फिर यार जैरेड से मैं बात कर रहा था तो उसने बताया कि पिंक बॉल पे ना जरा शाइन थोड़ी ज्यादा पड़ती है क्योंकि लाइटें भी ऑन होती हैं तो इवनिंग सेशन में फिर वो मसला पड़ जाता है बैटर को डिसाइफर करने में कि ये डिलीवरी कौन सी बॉल हो रही है. इट्स टफ टू रीड आउट ऑफ द हैंड. So that gives Mitchell Stark an edge. But we're just trying to make sense of it because he has a ridiculous record with the pink ball.
एंड आई मीन वो उसका मैच फैक्टर हम देख रहे थे तीनों बॉलों के साथ, व्हाइट बॉल एंड व्हाइट, पिंक एंड रेड, एंड पिंक बॉल वाज जस्ट लीप्स एंड क्या कहते हैं बाउंड्स अहेड of the other two, and I mean he is an enigma when it comes to bowling with the pink ball, और मतलब यार वही completely set the tone with the Jaiswal dismissal. और फिर गिल वाले की भी बात कर ली है, one dismissal that will probably go under the radar is the Rishabh Pant one. वो भी unplayable थी, he had to play at that. Rishabh Pant couldn't have left that delivery. ठीक है, that delivery, agar honestly ye do ball na ki hoti na, that would have been the best delivery of the match. Yeah, honestly. You know, well, Pat Cummins की भी एक ball है. Top of off. Pat top of off Cummins. That's his name. Yeah. मगर उसमें ये है सादी, पता है मैं confused था. I was like, was the Stark ball to Gill better or was Cummins ball to Rohit better in which he clipped top of off? ठीक है. Cummins की ये डिलीवरी तो हम देखते रहते हैं. ये तो हम आदी हो चुके हैं. This is his trademark dismissal, right? इस तरह के उसके बहुत आउट किए हैं उसने. स्टार्क वाली डिलीवरी आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलती. सो आई फील लाइक स्टार्क भी करता है इस तरह की बॉलें, लेकिन दिस वाज स्पेशल. या आई मीन इट वाज एब्सोल्युटली स्पेशल, एंड प्लस शुभमन गिल हैड अ टेरिफिक रिकॉर्ड वर्सेस हिम. ही हैड नेवर बीन डिसमिस्ड बाय मिचेल स्टार्क, राइट? तो वो भी, और खेल भी बहुत अच्छा रहा था. और पता है ही लुक्ड इन रियली गुड टच. ठीक है, गॉट स्टार्ट्स, कुडंट रियली कन्वर्ट देम, बट इट डिडंट सीम लाइक ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, राइट? और उसकी विकेट लेना स्टार्क के लिए इट मस्ट हैव बीन अ प्राइज्ड विकेट, बिकॉज़ दे केप्ट ऑन टेलिंग, लाइक द ब्रॉडकास्टर्स केप्ट ऑन मेंशनिंग हाउ शुभमन गिल हैज नेवर बीन डिसमिस्ड by Mitchell Stark, और उसका कोई पता नहीं 250-300 कुछ रन हो चुके थे और वो अभी तक आउट नहीं हुआ था. So that was special for sure. 8 wickets in the game. He was my player of the match, and I mean he was always going to be the ace up Australia's sleeve in this particular test. आप जाकर preview देख लो. ये चीज हमने specifically highlight की है कि Stark with the pink ball in Adelaide. That is why originally we gave that test to Australia. खैर मैंने तो पहला टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया को दिया था, यू नो, वो इंडिया जीत गई है, बट मैंने सिडनी वाला इंडिया को दिया था. इट्स रियली नाइसली सेट अप दिस सीरीज. 1-1 हो गई है. यू गॉट द गैबा नेक्स्ट, उसके बाद मेलबर्न एंड सिडनी. सिडनी में आई वुड लाइक टू थिंक इंडिया वुड बी फेवरेट्स, यू नो, बिकॉज थोड़ी अगर टर्न लेती है सरफेस, आई थिंक इंडिया हैज बेटर स्पिनर्स. बट I don't know, man. I feel like the Melbourne game will be the decider because I am kind of backing Australia at the Gabba. ठीक है, last time जीते थे इंडिया, पंत ने और गिल ने जिताया था. मेरी prediction अभी भी 4-1 Australia. 4-1 Australia अभी भी. अच्छा, I'm going to stick to 3-2, but I feel like that Melbourne test at the MCG, that's really going to decide all of this. But anyway, Stark की तो काफी बातें कर ली, and I just am marveled by the fact that this is like what, a 34-35-year-old, and he's still bowling at 140 plus. Yeah, he's cranking it up 140 plus consistently. आपको अफसोस होता है जब आप फिर शाहीन अफरीदी से कंपेयर करते हो कि यार शाहीन इज डेफिनेटली मोर स्किलफुल बॉलर. ठीक है, टैलेंट ज्यादा है, टैलेंट लेवल मेरे ख्याल से सीलिंग ज्यादा थी उसकी, मगर वो उसका ड्रॉप ऑफ जिस तरह आए, और वो अभी 24 साल की, 10 साल छोटा है स्टार्क से, एंड ही इज lost his pace, and look at Mitch-Stark. Everything. He's lost everything. Yeah, let's hope that there's a, you know, resurgence for Shaheen Shah Afridi, but इस वक्त तो हम कोई certainty सा कुछ कह नहीं सकते, और वो तो अब टेस्ट टीम का हिस्सा भी नहीं है. So that is a bit depressing, I suppose, because this was that test series in which अगर तो उसने आना था वापस तो यही आना था, where there's lateral movement and bounce in South Africa. It's bowler's paradise, fast bowler's paradise. So yeah, खैर शाहीन की बात नहीं कर रहे. This is not a podcast on Shaheen Shah Stark Afridi. की बात की है. Cummins की भी बात करनी बनती है. Captain Pat 2 for 41 in the first innings and then 5 for 57 in the second. सादी खूबसूरत. तुम लोगों का ही पीस था शायद, हमारा पीस था. मैं तुम लोग क्यों कह रहा हूँ, मैं भी इस इदारे में काम करता हूँ. तो सोच समझ के बोला. हमारा पीस प्रो पाकिस्तानी और प्रो स्पोर्ट्स का पीस. Yeah, pro sports का, in which they were mentioning test captains who have taken the most fifers. तो टॉप पे इम्मीद है. IK was number 1 with 12. ठीक है, सेकंड पे फिर रिची बेनो 9, and then Pat Cummins and Vishen Bedi are now tied at third with 8 each, और फिर fourth पे आकर आपका वो आता है, और fifth पे आता है Jason Holder, right? So Cummins has gone ahead of Jason Holder, and you know, he didn't look in rhythm in Perth. He was probably the worst of Australia's seamers, right? For sure. बिल्कुल मजा नहीं करा रहा था Pat Cummins, and that's a bit unusual because he's a really consistent performer in Test cricket, right? But वो Perth टेस्ट में तो ना बैट के साथ मुझे लग रहा था ये वो वाला Cummins है, ना बॉल के साथ लग रहा था. इस वाले में फिर उसने सेकंड इनिंग्स में दिखाया कि मैं वही हूं ब्रो. नहीं, एक तो चलो रोहित वाला डिसमिसल है, which is trademark Cummins signature stuff. उसके बाद शॉर्ट डिलीवरीज, he bounced out so many batters, man. बहुत अच्छी execution of the short ball, proper chin music, hurried a lot of batters. He was quick as well. Awkward angles पे पकड़ लेता था, जिसकी वजह से उसको वो शॉर्ट डिलीवरी पे विकेट्स मिलती जा रही थी. And yeah, I mean, classic
plans, पता है, पुराने जमाने वाले, पुराने कि जमाने, चलो, yeah. आराम से Old school bouncing cricket, करो. yeah. Hit him with that chin music, and that paid dividends for Pat Cummins. Ended up with the Pfeiffer, has that record now. और पता है, honestly, अगर ये 8 पे पहुंच गया ना सादी, Pat Cummins has got a good 3-4 years in him. हाँ. He could overtake Imran Khan. 12 है ना एमी की. हाँ. So 8 पे 5 और चाहिए ना, तो अगर ये हर साल 2 लेता है, 2 लेता है हर साल, तो हो गया. ठीक है, 3 सालों में डन हो गया. एंड आई मीन ही, और अभी 2 तो टेस्ट इस साल में पड़े. बिल्कुल, और अभी तो 3 टेस्ट इस सीरीज में ही पड़े हैं, राइट. और फिर श्रीलंका भी जाना है. खैर वहां पे आई डोंट थिंक ही माइट बी एबल टू गेट अ फाइट, you never know about, बट यू नो गैबा में तो और शॉर्ट स्टफ मजा कराएगा, बिकॉज़ वो तो बाउंस वाली सरफेस है. So I mean, I love him personally. Big fan of Pat Cummins, and I'm happy to see him, come back in form, looked in rhythm, and yeah, I mean, I feel like if him and Stark are in form or Hazelwood वापस आ जाता है, तो this will only get tougher for India facing this attack, right? अभी लायन तो खेला ही नहीं सही तरह इस टेस्ट सीरीज में. जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी इस टेस्ट में, तो ज्यादा barely featured इस टेस्ट में, तो शायद एक ओवर कराया उसने, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, राइट. और पता है, मैंने पूछा जैरेड से जब ये हो रहा था, चल रहा था मैच, मैंने कहा was there a point in playing लायन, तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई. उसने कहा कि look, you can't plan for dominance. You can't assume कि आप dominate करोगे, ठीक है. तो जब बॉल सॉफ्ट हो जाएगी in that 50 to 80 over period, ठीक है, before the new ball, you'll need someone to bowl those dog overs, and that's where the likes of Nathan Lyon and potentially Mitchell Marsh even come into play, right? So उसको खिलाने में definitely merit था, but now that Scotty Boland has also performed, I think he did really well, he right? did really well. 2 for 54 and 3 for 51. उसका भी ये पिंक बॉल के साथ है रिकॉर्ड. उसका भी है. 5 विकेट ली उसने. देखो, these 3 guys took all 20 Indian wickets. 8 for Stark, 7 for Cummins, and 5 for Scotty Boland. Jared again thinks that he was Australia's best bowler. Scotty? He kept landing it in that channel of uncertainty. And I personally thought before the start of this test that Australia will really miss Josh Hazlewood. They didn't. Not at all. Hoff, if you look at the last couple of years, has been Australia's best seamer. 100% in Test cricket. बहुत underrated. You can go and look at the numbers. You talk about Stark, you talk about Cummins, you never talk about Hazlewood. Not as much as we should be, definitely. So I thought he would be a massive miss, but Scotty Boland bowled so well that they didn't miss him at all. And I mean, build that man a statue already, right? I think that he's given Australia a very good option now going into the remainder of the Test series, because देखो, अब आपको किसी को रेस्ट कराना हो, तो आपको पता है Scotty Boland is warmed up. अब वो खेल सकता है, ठीक है? Ready to go. दूसरी बात, even though I don't think they should do this for the Gabba, because Gabba में Nathan Lyon को अच्छा bounce मिलता है, and he has a terrific record in Brisbane. I won't play 4 paces. Yeah, I wouldn't, but they would be tempted to. चलो यार, हम Hazelwood, Cummins, Stark और Boland चारों को फेंक दें. नहीं, फिर जैरेड वाला पॉइंट आता है बीच में, डॉग ओवर्स वाला, और फिर ओवररेट के मसले भी हो जाएंगे. एंड ऑस्ट्रेलिया आर इन लाइन फॉर टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफिकेशन. ओवररेट का नहीं, वो पेनल्टी ले सकते हैं इस टाइम पे. दे कैन इल अफोर्ड दैट पेनल्टी. हर कोई तो बेन स्टोक्स नहीं होता. बेन स्टोक्स को तो आजकल समझ ही नहीं आ रही कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चलती कैसे है. अच्छा, वो एलिस्टर कुक केम एंड सेड, आई नो इट्स ऑफ टॉपिक, बट ही केम एंड सेड कि सारी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पे भी ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरह पॉइंट्स लगा दो. उससे क्लब नहीं करा, बोला था क्लब ऑल ऑफ देम, और फिर कुछ करो. आई डोंट लाइक दैट. आई डोंट थिंक दैट विल वर्क यार. एक जो बहुत बड़ा कैवियट है इस पूरे सिस्टम में, इज दैट टीम्स डोंट गेट टू प्ले इक्वल नंबर ऑफ गेम्स. खा वो टेस्ट क्रिकेट हो, खा वो लिमिटेड ओवर्स हो. इक्वल नंबर ऑफ गेम्स अगेंस्ट द सेम ओपोनेंट भी होता है ना. एब्सोल्युटली. गेम तो तब बनती है वहां पे, तो अनलेस आप ग्रुप्स में डिवाइडेड हो. अगर आपने T20 में भी वो वाली वेटेज डाल दी, एंड नॉट ऑल T20s आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, एंड दैट्स एन एक्सट्रीमली फ्लॉड सिस्टम. सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीस फिक्सेस विल वर्क अंटिल फिक्स करना है तो फिर इंडिविजुअल हर फॉर्मेट पे इस तरह की चैंपियनशिप लेके आओ, और फिर उस चैंपियनशिप को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसा ना करो ना, जहां पे परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स और हर. बिल्कुल. इंग्लैंड ने क्या 20 टेस्ट मैच खेलनी है, पाकिस्तान ने 10 खेले. सो ये ना करो ना. यही तो मसला है, पैरिटी नहीं है. एंड अनलेस एंड अनटिल दिस स्पोर्ट, व्हिच आई थिंक इज द वर्स्ट रन मेजर टीम स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, 100%, इसमें तो कोई है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है. अनलेस इट बिकम्स मोर इक्विटेबल, ठीक है, दैट्स द वर्ड, राइट? आई डोंट नो, आजकल मैं फंसा, इक्विटी से इक्विटेबल, हाँ, दैट मेक्स सेंस. तो यार नहीं सही हो सकता है, नहीं सही है. बट खैर, we're going to talk about the Border Gavaskar Trophy right now, and yeah, I feel like Scotty Boland did really well as well. He was really. और मतलब आपके 3 पेसर्स 20 विकेटें ले गए हैं, और आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए. Job done, man. Bowled India out for under 200 twice. लेकिन आपको एक चीज जरूर चाहिए. अच्छा. आपको चाहिए कि आपके बैटर भी परफॉर्म करें. और पता है, इनका बड़ा मसला हुआ था बैटिंग का. Top 4 was in shambles. Still is. It kind of still is, actually, if you think about it. ठीक है, Marnus का score आया, and we'll talk about him. But the hero with the bat for Australia was South Australia's very own Travis Head.
एक तो पता नहीं इसको क्या खार है इंडिया से। भाई इंडिया को ये लगता ही लगता है, ठीक है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से शुरू हो, सही है, वहां पे इसने जाकर वो 100 मारा, एंड यू नो दे डोंट bowl enough short deliveries to him. That's what I feel is a big issue, and I saw Sunny G point out the same thing, and we saw this in the world test championship final, how when India did start peppering him with the short stuff, they ultimately got his wicket. I don't think there was enough of that over here either. और फिर of course world test championship और ये वाली नॉक तो है ही है, बीच में फाइनल है, वर्ल्ड कप फाइनल में भी इसने 100 ठोक दिया, ठीक है। एंड ही इज गॉट दिस आई डोंट नो पेंचेंट फॉर स्कोरिंग रन्स वर्सेस इंडिया, प्रॉपर वो इरफान पठान का भी ट्वीट आया था, ट्रेविस हेडेक, ठीक है। एंड या आई मीन he does bring out his best versus them. He was player of the match. मैं ना देता मगर he still had a solid shout, right? I think maybe they thought कि यार जहाँ सारे bowlers ने इतनी विकेटें ली हैं, वहाँ पे जिस बैटर ने 140 मारा उसको दे दो। The only reason why I feel कि Stark would have been a better choice is because he kind of set it up. ठीक है, उसकी 6 for 48 के बगैर आपको वो सिचुएशन ही ना मिलती। लेकिन फिर भी ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जा रहा था, आई थिंक हेड ने भी वही चीज प्रोवाइड की है ना। बहुत फर्क चाहिए, बहुत ही मिस चाहिए। एंड यस आई एग्री, लुक ही इज वन ऑफ दोस काउंटर अटैकिंग प्लेयर्स के इसका जो काउंटर पंच आता है इट नॉक्स यू आउट, ठीक है। एन आवर और टू ऑफ ट्रेविस हेड will it will devastate you. It will eliminate you from the competition, and that's exactly what he did. And you know, hometown hero, South Australia के कोई इतने legends नहीं है, you know, Jason Gillespie है। And I was talking to Jared about this very topic, and he named a few others. But basically, it's not one of those cricket talent-rich places in Australia. So obviously they'll own him, ठीक है? And they do. जिस तरह वो खड़े होकर उसके लिए celebrate करते हैं, उसको applaud करते हैं, cheer करते हैं. It was a spectacle. और Travis Head जो है ना, I just love the way he approaches his batting. He doesn't care कि match situation के, he's like I'm here to do a job. मैं 140 मारूंगा मगर 141 deliveries में वक्त नहीं जाया करना. I'm gonna put pressure straight back on the opposition, and that's what he did. I mean, he took down Ashwin. छक्के निकल के दिए, लंबे छक्के. He charged versus Harshit Rana and Siraj. Exactly यही कहने लगा था मैं. अश्विन ने चलो उसका चांस निकाला, वो ड्रॉप हो गया, वो भी सिराज से ड्रॉप हुआ, फिर सिराज साथ फड्डा भी हो गया. अच्छा, अब इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, सिराज के साथ फड्डे पे. I feel personally that too much has been made of this. कुछ भी नहीं था. It has been blown out of proportion. I know send-offs are not looked upon nicely or are frowned upon in cricket. But इतनी कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ी चीज. Yeah, if anything, I feel like the media is milking this now for views चाहिए ना, व्यूजियां चाहिए. And I don't think कुछ भी था यार उसके अंदर. इतनी बड़ी बात नहीं थी ना. कोई उन्होंने और आगे बात की है, लिटरली 3 सेकंड का वो पूरा सिनेरियो था. सादी, अगर मैं तुम्हारे साथ टेप बॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, यही E11 में हाई वेलोसिटी में, सही है, और मुझे चौका पड़े, मुझे छक्का पड़े, जो सिराज को ही पड़े, और फिर मैं बोल्ड मारूं, तो करोगे थोड़ा एनिमेटेड तो मैं भी हूँगा ना. और आपने अगर कभी क्रिकेट खेली और आपने थोड़ी कुट खाने के बाद किसी को आउट किया हो, तो यार आपके भी जज्बात निकल जाते हैं. एंड आई फील लाइक वो रश ऑफ ब्लड, एड्रेनलिन इज पंपिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ. I don't see anything wrong with it. If anything, I thought it was good for the game. और उसने भी आगे से F off ही बोला था. उसने बोला तो था वो. Even though he in the press conference said that I said well bowled. पहले well bowled बोला था, उसके बाद he owned up to it के उसके बाद मैंने बोला था. Jest में बोला होगा क्योंकि end में bowled तो वो full toss पे हुआ है. सही है, वो थोड़ा सा आगे जाकर यॉर्कर बन गया था. जो भी था इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं थी. It did swing a lot. It was a good ball. लेकिन इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी जो बना दिए लोगों ने. नहीं, और पता है इसमें 2-3 एंगल है. एक एंगल है जो जैरेड ने बोला है कि यू नो व्हेन यू नो द स्कोर इज सच एंड सच, कि कहाँ आपने 100 से ऊपर की लीड चढ़ाई हुई है, ठीक है, एंड यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम, एंड देन व्हेन यू आर सेंडिंग समवन ऑफ यू लुक लाइक अ डिक, ठीक है, कि यार आई मीन मेट लुक एट द स्कोर बोर्ड, राइट. एक वो एंगल है कि हाँ यार मतलब हार रहे हो इतना, क्या सीन चल रहा है. ये हम भी बात करते होते हैं जब पाकिस्तानी बॉलर से सेलिब्रेशन आती है जब मैच मुकावा होता है. वो मैं एंगल समझ सकता हूं, मगर दूसरी तरफ मुझे थोड़ा हिपोक्रिटिकल भी लगता है. ठीक है, आई नो पैट कमिंस टीम इज द वोक टीम दैट वाज प्रॉमिस्ड, और इस टीम से मुझे कोई ऐसा शिकायत नहीं है. शिकायत यही बनता है. यही होता है. So I understand that कि this is not like an Australian team of old, but Travis Head has played in Australian teams of old. So it does seem a bit hypocritical when Australians are the ones who are complaining about behavior. Australians are the one. I don't think team में से किसी ने complain की थी. नहीं. And you know they kissed and made up in the end. जप्पी मारी है. So I'm glad you know that we can put this behind us. But it was one of the main talking points of the game. अच्छा, मैंने एक बात, it was. फिर मुझे इससे याद आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने he kind of threw Siraj under the bus. Did he? I didn't watch Rohit's press conference. He said कि मैंने भी क्लिप ही देखी थी कि क्लिप किया. Siraj is a passionate guy, लेकिन there's a thin line between being
between showing aggression and being too aggressive? I don't know. I don't think Siraj did anything. मुझे भी नहीं out लगा, of लेकिन line. मुझे ठीक है. ये स्टेटमेंट बड़ी वियर्ड लगी थी. I know that send-offs are a thing, ठीक है, और उस पे पड़ जाती हैं पेनल्टियां whatever. मगर यार उसने उसको वेल बॉल्ड बोला, सिराज ने कहा जा ही ठीक कहा है, ना. यही बोला उसने, इससे ज्यादा नहीं हाँ, कहा. उससे सिराज को I don't know कितनी अंग्रेजी आती है. आती And भी हो तो क्या ही कहा होगा. even Travis Head said that he is disappointed in his reaction हाँ. and that Siraj might have misheard him. हाँ, ठीक तो है, ये भी हो सकता है. मगर आकर आप अगर ये बातें कर रहे हो कि that's not how I like to play cricket. I don't know, man. You were playing this same sort of cricket not too long ago. Like Steve Smith की ऑस्ट्रेलिया तो in your face थी and constantly in your Even ear Tim as well. Payne की भी. Tim Payne की भी नहीं, खैर Tim Payne जरा डिफरेंट किस्म का बैटर करता था. हाँ, लेकिन करता तो था ना. मगर स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया वुड हर्ड अब्यूसेस. हाँ. ठीक है, we've seen it, Yeah. man. डेविड वार्नर, क्विंटन डिकॉक के ऊपर चढ़ा हुआ है. डिकॉक है, डिकॉप नहीं है. डिकॉक बोलती है, मैंने डिकॉक के ऊपर चढ़ा हुआ है. फिर वो फजूल में रबाडा को फाइन पड़ते रहे हैं. यार वो तो फजूल ही फाइन था. मतलब वो he was in my space and this and that. Like, come on, man, grow up here. No. Honestly. And you talk of this as the most heated rivalry in all of sport, right? तो फिर or all of cricket. तो फिर ये तो it comes with the territory now. ये तो होना है फिर. क्या था, कुछ भी नहीं था यार. इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज में अगर इस तरह की चीज भी ना हो तो फिर तो वो हाई प्रोफाइल सीरीज ही ना हुई. द स्टेक्स आर हाई सादी. एक तो ऑस्ट्रेलिया को 10 साल से बीजीटी नहीं जीता, ठीक है, इंडिया ही जीतता आ रहा है. दूसरी तरफ आप ये देखो कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफिकेशन इज ऑन द फकिंग लाइन. सही है. सो ऑब्वियसली टेम्पर्स विल फ्लेयर. और अगर आपने टेप बॉल क्रिकेट ही खेली हो तो आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा सिराज के कोई साथ. भी कंपेटिटिव स्पोर्ट खेली हो यार, वैसे ही वीडियो गेम क्यों ना खेली हो. हाँ, खैर वो काफी बैकिंग मिली सिराज को. क्या तू जम कर खेल, ये वो काफी बैकिंग भी मिली, काफी ज्यादा रेसिज्म भी देखने को मिला. एंड सम रियली एजुकेटेड इंडियंस एंड स्टफ वर cheeky to point out कि yeah, that's all good, support him as long as it comes to him buying a house somewhere. I don't know the exact details. मुझे पूरी इसकी वो नहीं पता बैकग्राउंड जोक का, but apparently there are some societies in which Muslims can't buy houses or whatever. So I actually like all of those accounts a lot because पता है मुझे वो लोग पसंद है जो अपने गिरबान में झांकते हैं. And they call out shit in their own country as well. We try to do that all the time with Pakistan, you know, and that's the sort of attitude that I want to see from the youth going forward because जब तक अपने मसले आप ठीक नहीं करोगे तो दूसरों पे आप उंगली भी नहीं उठा सकते, right? But anyway, ये तो यार चलो फड्डा हुआ. उसमें I think थोड़ा सा ये एलिमेंट भी था कि सिराज was the one who dropped head. ठीक है, 76 पे था हेड. लीड कोई 48 तक थी मेरे ख्याल से उस टाइम पे. वहां पे अगर सिराज वो कैच पकड़ लेता तो मैच फर्क भी हो सकता था. बिल्कुल. If Australia's lead was under 100, maybe India would have played more confidently. And India, if they had gotten like or set a target of 150 odd, you can't write them off, can you? Even if Jasprit Bumrah isn't fully fit, you still can't write them off. India would well have been in the game. और फिर यार हेड को और भी मौके मिले. एक वो एज निकली है स्लिप्स के थ्रू. I thought Pant should have attempted that catch. पंत का ही कैच बनता मुझे था तो पंत का ही कैच लग रहा था वो. और पंत ने एक और भी ड्रॉप किया बाय द बाय. उसने मिक्सवीनी को भी ड्रॉप किया. सो या गिविंग ट्रैविस हेड वन अपॉर्चुनिटी इज क्रिमिनल. दो दे दो तो फिर तो आपने अपने लात पे पूरी तरह से कुल्हाड़ी मार दी. दिस इज अ गाय हु डजंट टेक एनी प्रिजनर्स. ट्रैविस हेड जिस जारहाना अंदाज से बैटिंग करता है वो तो आपको आधे घंटे में फारिग कर देगा. कर दिया. यू नो, इट डजंट टेक हिम लॉन्ग टू कंप्लीटली डेंट योर चांसेस. एंड दैट्स व्हाट ही डिड. एंड दैट्स व्हाई एक सेशन चाहिए बॉय को ब्रो. सवाल पूछूं? पूछो. Is he the best all format batter currently in world cricket? हाँ. I think he is. All format में तो yes. Batter. हाँ. Cricketer तो बुमराह. बैटर ही. मेरे ख्याल से T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, ट्रेविस हेड की गुड्डी चढ़ी हुई है भाई. एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट. आई डोंट थिंक इतना अच्छा फिलहाल कोई ऑल फॉर्मेट बैटर है. यार पता है ये भी स्ट्रगल कर रहा था टेस्ट से. इसके अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं थे पिछले साल में. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया था पाकिस्तान के खिलाफ भी. मीर हमजा बोल्ड दैट जैफर to Travis Head, remember? And Shamar Joseph cleaned him up as well. He bagged a pair in that Gabba pink ball test. अगर तुम्हें याद हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ. तो टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरह नहीं चल रहा था. बट लुक एट हिम नाउ. आए और उसने वो भी जाकर शतक जड़ दिए. जड़ा इंडिया को जड़ दिया वो. एंड जिस गेम में नेक्स्ट बेस्ट स्कोर 64 था मार्नस का, वहां पे आपने 140 मार दिए. यू किल्ड द गेम. एंड वी हैव गॉट टू डॉफ आवर हैट ऑफ टू ट्रैविस हेड. ही इज अ ट्रीट टू वॉच. ठीक है, व्हेन इन फुल फ्लो ब्रो, बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. एंड आई मीन इवन इफ यू आर एन इंडियन सपोर्टर, आई मीन ठीक है आपको थोड़ा लगेगा जब वो मार रहा होगा. एंड आई नो दैट ट्रैविस हेड has been enemy number 1, kryptonite, but you can't help but praise him either, man. You have to appreciate the sort of cricket he's playing. And when he's batting you can't take your eyes off the screen. ऊपर से he's got the best mustache in cricket. हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं. हाँ, cricket's favorite mustache man. और
है किसी की? प्रॉपर कमीनी किस्म की मूछ है, और पता है उसकी शक्ल मुझे पसंद भी नहीं आती जब मूछ हाँ, नहीं मूछ के बगैर तो वियर्ड सा लगता है। मूछ बड़ी जरूरी है। फिर वो सेलिब्रेशन भी आई बेबी वाली, yeah. his wife was in the stands with his child. These are things Beautiful that you love scenes. to watch. Beautiful Like, I think in the future, ठीक है, when he'll retire and everything, there will be a Travis Head statue outside the Adelaide Oval. He's got to be South Australia's Yes, best batter. हाँ. Yeah. और वो प्रॉपर प्राइड ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया यार। आई नो एलेक्स कैरी भी इस टीम में खेलता है, वो भी वहीं का है, मगर लेवल्स में थोड़ा फर्क है। एंड ट्रैविस हेड इज अ बिट ऑफ अ कल्ट हीरो एट दिस पॉइंट। पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो दिस गाय हैज बीन क्रिकेट्स बिगेस्ट मैच विनर। या प्रूव इट अदरवाइज मैन। इसने सेमीफाइनल में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट ले ली थी। विकेट ले ली थी, हाँ, ऑन अ हैट्रिक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हर इंपॉर्टेंट मैच में तो चला ही। हाँ, और ठीक है, स्ट्रीकी था, चांसेस ले रहा था, नहीं लिया अपने चांसेस यार। यू लेट हिम ऑफ द हुक। स्ट्रीकी भी 70 ऑड पे जाके हुए ना। एंड मुझे थोड़ा तरस भी आया सिराज पे, ठीक है, ही डिडंट बॉल ऑल टू बैडली, ठीक है, शुरू में नई बॉल के साथ भी अच्छा था, एंडेड अप विद 4 for 98, ठीक है, पिटा, ऑब्वियसली पिटा, ही वाज गेटिंग कार्टेड बाय ट्रैविस हेड, बट 4 for 98 was still a good effort, and unfortunately he won't be remembered for his bowling in this test. I just hope that he can, you know, take some time off, cool off and come back stronger at the Gabba, because clearly खेल तो रहा है अब ये। हाँ, क्योंकि शामी तो नहीं है, शामी तो नहीं आ पा रहा वापस उसका। तो फ्रॉम द रिपोर्ट्स दैट आई हैव रिसीव्ड ही वोंट बी एबल टू मेक इट फॉर द गैबा टेस्ट। हाँ, शायद मेलबर्न में आ जाए। नहीं, मैंने सुना सिडनी। रवि शास्त्री बोल रहा था। रवि शास्त्री तो इस टीम का कोच था, तो उसको तो पता होंगे, कॉम्स में बोल रहा था। या सो एनीवे आई फील लाइक, you know, Siraj should take some heart from this performance, even if India got battered. आपने फिर भी 4 for 98 लिए, and there were some spells in which he really deserved a wicket. एक बीच में celeb repeal कर दी थी, याद है, और वो फिर नहीं था आउट। बल्कि लोगों ने तो ज्यादा इशू बनाया ना इसका हेड वाली सीन में। मुझे तो इसका मार्नस वाला सीन बुरा लगा था। मार्नस वाला यार, मार्नस was batting, और वो बंदा कोई इतने ज्यादा ग्लास लेकर वो जो उसने साइड स्क्रीन के आ गया था, and Siraj obviously was in his run up and he just kind of threw the ball at one. That should have been fine. If anything, that I thought was, I don't know what the spirit of cricket is anymore, but in my books, that was against the spirit of cricket. That was a bit out of line. It was far worse than the head thing, in my opinion. सही बात है। हाँ, तो पता नहीं ये कुछ अजीब सा ही सीन हुआ है। And yeah, man, like toughen up a bit. It's a heated series. A lot is on the line. Softies. Yeah, stakes are high. ठीक है, I love the fact that Pat Cummins' team is woke. But थोड़ा सा आईने में भी झांकने की जरूरत है कि यार हम ही वो लोग थे जो पिछली टीम में ये हरकतें करते भी थे। हमने we might have turned a corner, और turned a corner क्यों कहता हूँ मैं बार-बार? Turned a page. We might have turned a page. Turned a corner भी होता है। Turned a corner भी होता है। I think पता नहीं, उस दिन मैंने किसी महफिल में बोला है और सब हंसने लग गए। I think क्योंकि असल में फुटबॉल में भी कॉर्नर हो रहा था, शायद इसलिए। तुम थे नहीं वहां पे? मुझे नहीं याद। हाँ, था। अनार गुल के तुम पटतिके भूल गए हो। पटतिका। अच्छा, मैं कह रहा था, बाय द वे, इस्लामाबाद में अगर आप रहते हो तो रीच आउट टू अस इफ यू वांट द नारगुल एक्सपीरियंस, विल फैसिलिटेट यू। नंबर ला देंगे, बस मेक श्योर यू हैव अ पठान विद यू। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज देन पश्तो। अच्छा, और हमें भी खिला देना। या हमें भी जरा बुला देना ना, साथ हमारे फीस्ट करना। अच्छा, मैं कह रहा था, मैं कभी बार सोचता हूँ आजकल के जो क्रिकेट फैंस हैं, अगर ये थोड़े अरसे पहले वाली क्रिकेट देखते होते तो फिर तो ये चीजें, वो जावेद मियांदाद लिली को बैट मार रहे, इनसी चला गया स्टैंड्स में, आलू बोले उसको मारने। वो जावेद मियांदाद ने क्या मर्व ह्यूज को बोला था, ट्रक ड्राइवर वाली मूंछ है तुम्हारी। मतलब ये लोग तो पागल हो जाते। बाय द वे, मर्व ह्यूज वन दैट बैटल विद जावेद, तो उसने आगे से भी उसको कोई बात लगाई थी जो मुझे याद नहीं है। तो शेबी और हरभजन वाला पूरा जो शेबी और मैटी हेडन और गंभीर एंड लाला। हाँ, वो तो अब मैं आपस में जब हम ऑफ स्क्रीन होते हैं ना, वो करते रहते हैं, आप आपस में एक दूसरे को बोलते रहते हैं। गंभीर एंड अफरीदी, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो YouTube पे जाकर देखो। एंड नॉट सेफ फॉर वर्क, डोंट लिसन टू इट इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। अकेले में जाकर बाथरूम में अपने आप को लॉक करके सुनो, हेडफोन्स लगा लो, या तो फिर easier fix. But anyway, so yeah, felt for Siraj a bit, but he wasn't the pick of India's bowlers. Obviously, वो तो एक ही बंदा है, जस्सी भाई। यार फिगर्स तो 4 for 61 है, मगर बॉलिंग उससे बहुत बेहतर थी। कमाल बॉलिंग, हमेशा यही होती है, अनप्लेबल स्टफ डिस्पाइट स्टार्क एंड ऑल ऑफ हिज हेरोइक्स। आई स्टिल फेल्ट कि जब बुमराह बॉलिंग कर रहा था मैं कहता था यार इसको किस तरह खेलना है। बुमराह का एक फियर फैक्टर जो है ना, वो कुछ और ही बन चुका है। और अभी लिटरली ऐसे लगता है कि वो हर मैच में, हर इनिंग्स में 10 विकेट। एक तो उसके पास 50,000 किस्म की डिलीवरी है, ऊपर से उसका कंट्रोल, ऊपर से लाइक पेस इज ऑलवेज अप एज वेल। एंड आई मीन not always, and we'll get to that as well.
Yeah, I mean, look, despite all of Stark and Cummins' heroics, when Bumrah is bowling, you're like, damn, this is the best bowler on the pitch. Easily. और commentators ने भी कई दफा ये बोला कि यार, it's like watching two different games of cricket. One when the rest of India's bowlers are bowling, and one when Jasprit Bumrah is bowling. For sure. And I completely concur with that sentiment. बहुत बड़ा gap है. That's just how good he is. Like, he is literally India's trump card. And he's the reason why you've won that T20 World Cup final as well. ये बात भी याद रखो आप. वहां से आपको सिर्फ बुमराह जिता सकता था. T20 वर्ल्ड कप फाइनल नहीं, पूरा T20 वर्ल्ड कप. हाँ, मगर उस फाइनल में खास तौर पे उस सिचुएशन से जहां पे रन अ बॉल एट टाइम्स लेस देन रन अ बॉल चाहिए था साउथ अफ्रीका को, there is only one person in the world or bowler in the world who can defend that target from there, and that is Jasprit Bumrah. और उस वक्त भी मतलब अभी बुमराह आया भी नहीं था उस फाइनल में, और सबको पता था कि बुमराह के ओवर रहते हैं, कैसे करेंगे यार. हम यही कहते हैं कि बस बुमराह के ओवर रहते हैं, और वो नेगोशिएट हो गए, वो हो कर गया तो श्रीलंका जीत जाएगा, साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, वरना तो कोई सीन नहीं. और वही हुआ. बुमराह he looked at his belligerent best in this game as well, but then he pulled up and he was struggling for fitness. So Saadi, I'm no doctor, but I have cramped. और जब क्रैम्प आता है तो चीखें निकल जाती हैं, ठीक है, आप के रोने निकल जाते हैं till it's gone, ठीक है. और मुझे तो कभी बिस्तर में पड़ जाता है. एक मुझे काफ वाला पड़ता है. तो पानी पिया करो ना तुम. हाँ, मुझे पता तुम किधर लेकर जा रहे थे इस बात को. नहीं, हुमायूं अहमद याद है तुम्हें? बंदा याद है मुझे. बात हुमायूं अहमद ने बात की थी मुझे, हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, टेप बॉल क्रिकेट, तो मुझे क्रैम्प पड़ गया था, तो उसने मुझे एक जुगत मारी थी जो मैं तुम्हें अब शो के बाद बताऊंगा, ठीक है. तुम्हें आइडिया हो गया होगा. डिहाइड्रेशन की वजह से होता. हाँ, मैं उस वजह से बोल रहा था. No dirty talk over there. No, but I'll tell you later what his comment was. तुम भी वही होते थे, तुम भी खेल रहे होते थे. But yeah, look, like I said, I'm no doctor. It didn't look like a cramp to me because he didn't look in agony. He was just floored and he was kind of clutching his groin. That's what he was doing. And groin injuries are bad. Yeah, एक तो back injury बड़ी खतरनाक होती है, और एक ग्रोइन इंजरी बड़ी खतरनाक होती है. नी इंजरी भी बड़ी खतरनाक. नी इंजरी भी बड़ी खतरनाक होती है यार. शोल्डर इंजरी फॉर अ बॉलर भी बहुत खतरनाक होती है. सारी इंजरियां काफी हद तक खतरनाक होती हैं. So here's to hoping that Jasprit Bumrah is fully fit for the remainder of the test series, because I think Saadi he's going to have to play all 5 tests. हाँ, उसके बगैर नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. इंडिया कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विदाउट जसप्रीत बुमराह. अच्छा, नहीं. I think that's the case. I mean, he is too good. लेकिन India have shown us कि when the chips are down, वो आ जाते हैं. बल्कि जब इंडिया की इंजरियां होती है ना, तो वो कुछ चलेगी टीम बन जाती है. तब वो जीतते ही जीतते. अभी अपने गैबा टेस्ट तो चलो पुरानी बात हो गई है, सही है, तब भी बेतहाशा इंजरियां थी. Go back to the first test of this series in Perth. I don't know, man. Stand in captain and injuries is a recipe for success for India for some weird as fuck reason. सही है. But yeah, I mean, it was not a good sight. And पता है, रोहित्स कैप्टनसी गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैक इन दिस गेम, जो होना ही है. अब चार टेस्ट लगातार हार चुके हैं, और पहले भी वो बना हुआ था पॉइंट ऑफ कंटेंशन. सारे लोग रोहित को पेल रहे थे इंडिया में आफ्टर लूजिंग दैट टेस्ट सीरीज और गेटिंग स्वेप्ट बाय न्यूजीलैंड एट होम. अच्छा, रोहित की कैप्टनसी पे अभी आते हैं. मैं सवाल ये पूछना, डू यू थिंक कि सेकंड इनिंग्स में बुमराह को बॉलिंग भी करवानी चाहिए थी? नहीं, एक ओवर दिया ना. हाँ, लेकिन 19 रन रहते. यार पता है, the worrying part was when he was bowling like 120 127 125. Okay, this is bad. This is not good. है ना. अब he has 5 days to recover. He's bowling at Nitish Reddy's pace basically. He has 5 days to recover. और अगर एक ओवर भी आप बचा सकते हो उसका, तो मैं तो बचा लेता. भाई उसकी आइस बाथ्स तैयार रखो, एक फिजियो उसका ही लगा दो, होगा जो सारा वक्त बुमराह के साथ ही रहता है. मुझे लगता है होगा. Yeah, because India needs Jasprit Bumrah. Simple as that, and he is a class apart. Otherworldly bowling talent, someone who executes all of his deliveries to perfection. हर एक वेरिएशन पे उसकी लेंथ पक्की है. उसके पास पता नहीं किस किस तरह की बॉलें हैं. वो कटर भी करा लेता है, वो दोनों तरफ स्विंग कर लेता है. यॉर्कर इज डेडली. एवरीथिंग. He's got the full package. ठीक है. And it would be a bummer if we don't get to see him at the Gabba, or if he doesn't play all 5 test matches, because when push comes to shove, which it has, India need to win the series to qualify for the World Test Championship final. सही है, खत्म. बात सिंपल है. 3-2 is the minimum. मिनिमम. और वो भी 3-2 के अंदर भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि बाकी रिजल्ट्स भी देखे जाएंगे. ऐसा कोई सीन बनेगा. सो आई मीन, आई विल बी वॉचिंग कीनली हाउ दिस ट्रांसपायर्स. बट रोहित की कैप्टनसी पे आ जाए. He was getting a lot of flack, और इसको न्यूजीलैंड सीरीज में मिली थी. और मैं ये नहीं कह रहा इसने गलतियां नहीं की, ठीक है. There were times where even I felt that he was letting Australia off the hook a bit, ठीक है, सेटल होने दे रहा था. But that morning session, morning तो नहीं होता इसके अंदर, डे सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ डे 2, ठीक है. उसके अंदर बुमराह ने आते साथ 4 ओवर कराए, स्पेल कराया 4 ओवर का, 2 विकेट निकाल गया. ऑस्ट्रेलिया 103 for 3. We didn't see him for the remainder of the session.
अब इसके अंदर उस वक्त मैं भी कह रहा था कि यार ये क्या कप्तानी है, बुमराह को क्यों नहीं ला रहा, what the fuck is going on, right? And then when I saw Bumrah struggle for fitness, I was like, okay, so this is a catch-22 situation. If he brings Bumrah on, right, and Bumrah breaks down, tab Rohit villain. If he doesn't bring Bumrah on, tab Rohit villain. There was no winning for Rohit Sharma as far as bringing Bumrah on was concerned. यार वो सिर्फ एक इंसिडेंट है ना, चलो ठीक है, वहाँ पे इंजरी अगर कंसर्न्स थी उसको रोक लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर पिछले 4 टेस्ट में रोहित की कैप्टनसी देखे ना, तो देयर हैव बीन मल्टीपल ओकेजन जहाँ पे ही हैज लेट द ऑपोजिशन कम इनटू द गेम और फिर वो क्रूज मोड पे चले जाते हैं। नहीं, बात तुम गलत नहीं कर रहे, मैंने ये नोटिस किया और मैंने ये न्यूजीलैंड सीरीज में भी तुम्हें बोल दिया था। मैं तुम्हें एक बस बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, वी कैन निट पिक एट रोहित शर्मा's captaincy, whatever, I'm here for that. But when people speak of his captaincy as the main reason why they have lost, मेन रीजन की बात it's नहीं not. Even in this game, yeah, it's the batting that cost India. Main- आप एक भी इनिंग्स में 200 नहीं कर पाए, पहले आप 180 पे ढेर हुए हो, फिर आप 175 पे यार, ढेर हुए हो, कभी- you lost the game because of that. ऑब्वियसली, लेकिन कैप्टनसी इस तरह का रोल होता है कि वो अगर अच्छी भी हो और आप हार भी जाओ या गंदी भी हो तो आप हार भी जाओ, दैट इज नेवर द मेन रीजन, इट्स वन ऑफ द रीजंस। और एक अच्छा कैप्टन जो है ना, मेरे लिहाज से थोड़ा और प्रेशर डाल सकता था उस सिचुएशन पे। आई एम नहीं, सॉरी, मैं disagree नहीं कर रहा। इट वाज़न्ट द मेन फैक्टर, ऑब्वियसली कभी भी नहीं। मैं कहता हूँ कैप्टनसी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। Yeah, he's just an easy scapegoat. ही इज एन इजी स्केपगोट, पता है, लेकिन अगर अगर आप उसका टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देख लो बेराम, तो इट्स नॉट बिन इम्प्रेसिव। No, sure. But you know what's a bigger issue right now? His runs. They've dried up. Sadi, can you देखो- pull it up? Can you open Rohit Sharma and मैं tell me खोलता हूँ रोहित शर्मा 2024 के में क्या stats, रिकॉर्ड है? वो तो देख लेते उसके हैं। स्टैट्स में जाओ और 2024 वाला साल देखो। आई वुड बी रियली कीन, बिकॉज मैंने जो फिगर देखा था उसने कोई पता नहीं 10 टेस्ट मैचों में 12 की एवरेज से रन स्कोर किए थे। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग ओवर देयर, व्हिच इज व्हाई आई एम हैविंग सादी चेक दिस। मुझे बताओ रोहित शर्मा ओपन क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, सो इसके लिए भी मेरे पास जवाब है। सो रोहित शर्मा बैटिंग एट 6 इज ऑब्वियसली अ वियर्ड वन। आप सोचोगे कि यार अगर आपने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है तो आप पंत से तो ऊपर आओ, ठीक है, मगर फिर पंत लेफ्ट हैंडर है, तो ही गिव्स यू दैट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट इन द मिडिल ऑर्डर। नाउ KL Rahul had a fantastic game opening the batting in Perth. If he's done well in that position, you'd kind of want to give him another run. So I'm not entirely opposed to Rohit letting KL Rahul open. मैं वैसे रोहित से ओपन ही कराता, and I never thought कि ये नहीं करेगा। लोग भी हमसे सुपर चैट भी आई थी, याद है तुम्हें? मैंने बोला था नहीं करेगा। आई वाज लाइक नहीं यार, रोहित ओपन ही करेगा। सादी ने वैसे बोला था कि नहीं करेगा, और काफी लोग ये सवाल कर रहे थे। क्योंकि मेरा भी यही रैशनल था ना कि राहुल चल गया, राहुल को 6 पे फेंकना इस वक्त मतलब है कि आपकी जो ओपनिंग है उसको डिस्टर्ब। और पता है राहुल स्टॉर्म बहुत अच्छा वेदर कर रहा था, ही लुक्ड इन कंट्रोल, ठीक है, रन्स नहीं आए इस साल का देखना है पूरा। हाँ, 2024 के मुझे बता दो उसके फिगर्स टेस्ट क्रिकेट में। मैं बता What do those numbers look like? बस नेट चल जाए इधर। Yeah, I can't imagine that those numbers would be good because 27 की एवरेज है। yeah, 27 की एवरेज है 2024 में। और पता नहीं आपको शायद वो वाला फिगर पता हो कि आखिरी 10 टेस्ट में कितनी है। मुझे कोई 12 या 13-14 इस तरह कुछ एवरेज है। आखिरी 12 टेस्ट में है 27 की एवरेज। अच्छा, आखिरी 12 में 27 इस साल 12, तो फिर आखिरी 10 में 12 की होगी, ऐसा कुछ होगा। देख लेते। I can't quite recall. How do you pull up Rohit Sharma's last 10 test matches? आई डोंट नो, डेट्स डाल के। हाँ, डेट्स डाल दो। डाल दो तुम, जून से डाल दो ना, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, पोस्ट T20 वर्ल्ड कप मुझे उसके नंबर्स बता दो, एंड देन वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन। बिकॉज इंग्लैंड वाली सीरीज थी ना उससे पहले, टेस्ट सीरीज एट होम, उसमें कुछ रन्स किए होंगे रोहित ने। सो पिछले 6 मैचेस में 11 की एवरेज है। Yeah, so 6 मैचेस में 11 की एवरेज इज क्वाइट पुअर। एंड obviously when you've been swept by New Zealand at home, जब आप 12 साल से टेस्ट सीरीज ही नहीं आ रहे घर पे, तो उसका धचका तो लगता ही है। फिर यार स्टैंड इन कैप्टन था तो आप जीत गए, फिर आप वापस आए तो हार गए, तो प्रेशर तो आप पे पड़ना है। मगर ज्यादा मसला बड़ा उसकी कैप्टनसी से उसके रन्स हैं। वी कैन ऑल बी क्रिटिकल ऑफ हिज कैप्टनसी, बट आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया हैव लॉस्ट दिस गेम और हैव लॉस्ट द सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड आइदर। आई फील लाइक हिज रन्स have completely dried up, and I'm not going to. Do you think that is because of the captaincy pressure? It could be. Could be. There could be some sort of correlation over there, right? अच्छा, आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में इसकी 25 की एवरेज। अच्छा, 25 की एवरेज। So I had those. वो फिर innings देख रहा हूँ मैं। That's probably what I saw, right? So yeah, it's quite poor. And look, he is a legend of the game. ODI में तो top or top. और रोहित 3.0 को मैं हमेशा T20 भी खिला दूं। और even though he's retired from T20 eyes, but we've seen what he was capable of, right? At his belligerent best. Test cricket में for a while there in the middle, he cracked it as opener. यार मैं बताऊं रोहित का थोड़ा सा मुझे क्या इशू लगता है। ओपनर आए तो ये उसी फ्रेम ऑफ माइंड से खेलता है जिस तरह वो ODI और T20 क्रिकेट खेलता है। इट कुड बी इम्पैक्टफुल रन्स, लेकिन
इस टीम के साथ ना मुझे लगता है इम्पैक्ट से ज्यादा ना थोड़ा सा स्टे चाहिए ऊपर, ताकि हाँ। आप 100 रन की पार्टनरशिप डाल लो, उसके बाद आपकी बॉल लंबी बैटिंग आप बॉल थोड़ी पुरानी कर थोड़ी कर which honestly KL Rahul made sense, हाँ। right, कि वो कर So- देगा ये काम। सो रोहित का बड़ा डिफरेंट सा सीन है। या तो आप उसके इम्पैक्ट के लिए जाते हो, जो वो आके आपको क्विक फायर 48 40 रन मार देता है ऑन 20-30 बॉल्स, विच इज गुड। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने की भी जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि him coming down at 6 वो चीज नहीं कर सकता। I mean, yeah, 6 is a bit too low for Rohit, but I mean, before this test match, he was averaging 50 at 6 as well. यही तो थोड़ा वियर्ड सा सिचुएशन। मुश्किल कॉल थी, आसान चीज नहीं थी। अब आकर हाइंडसाइट में कहना आसान है कि ओ कप्तान होके आप 6 पे आए। देखो, ये तो सेंस है। थी, हाँ, सेंस थी राहुल को भेजने के ऊपर। रैशनल तो था बिल्कुल सही, हाँ। क्योंकि राहुल ने किया था, और मेरे लिहाज से राहुल को उधर से हटाना ना वो ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ने वाली नहीं, बात। और फिर वो हो जाता कि यार केएल राहुल बेचारे की यही जिंदगी रह गई है कि बस वो प्लग ही रहेगा, एक जो गैप फिल करता रहेगा। गुड थिंग फॉर केएल राहुल इन दिस टेस्ट मैचेस कि वो स्केपगोट नहीं बना। हाँ। उसकी वजह से नहीं आ रहे। नहीं केएल राहुल यार, honestly, I'm not saying he's lived up to his potential, but he gets bashed a bit too much. too much. And I was actually really happy for him when he got those runs in Perth. But 26 पे जब आउट हुआ था तो आउट था नहीं मेरे हिसाब से। और फिर 77 जब उसने किया तो उसने 200 रन की पार्टनरशिप लगा दी। क्या कहते हैं वो, साझेदारी 200 रन की साझेदारी। मगर रोहित शर्मा का एक और सीन है कि ऑस्ट्रेलिया में इसने कभी कोई शतक नहीं जड़ा। सादी दिक्कत होती है, काफी दिक्कत होती है। आ रहे शतक, और अब तो बड़ी चर्चा हो रही है। अच्छा शतक आ रहे अभी। मेरी टिप्पणी ये है ओह मैन, ये विक्रांत गुप्ता की गलती है शायद, ठीक है, उससे मैं वर्ड्स पकड़ता हूं कि रोहित शर्मा पे like I just wouldn't give up on him just yet. देखो, I agree that he's in the twilight of his career. It's probably his last tour of Australia. Definitely his last tour of Australia. Probably नहीं। तीन पक्का। टेस्ट मैच है, शतक आ रहे हैं या नहीं? शतक मुझे मुश्किल Prediction लग हो रहा ना, है। prediction। नहीं आई थिंक ही माइट गेट अ कपल ऑफ 50s मे बी, बट शतक मुझे मुश्किल लग रहा है। पता है क्यों सादी? एंड ये चीज मैं पिछले शो में बताना चाहता था, ये बात नहीं हो सकी हमारी। यार पिछले कुछ सालों में ना, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 सालों में, एक तो जो ड्रॉप इन सर्फेसेस एंड दे आर मोर ग्रासियर, सो इट्स गॉटन टफर फॉर बैटिंग। और दूसरा, कूका बरा ने ना अपनी बॉल थोड़ी अपडेट कर दी है। इट्स अ मोर प्रोनाउंस सीम एंड एवरीथिंग, व्हिच मेक्स इट इवन मोर टफर फॉर बैटिंग। सो नाउ यू विल सी, जैसे आप पीछे के तुम थोड़ा चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे खासे रन्स बनते थे। हाँ। अब अपना असद शफीक तकरीबन 450 चेस करने लगा था, राइट? सो इट्स नॉट द सेम एनी मोर। बैटिंग इज गॉटन अ लॉट टफर इन ऑस्ट्रेलिया। अब इस पे आप डिबेट कर सकते हो कि ये वही चीज हो रही है जो इंडिया ने की अपने साथ, रैंक टर्नर्स बना के, नहीं। शेफील्ड शील्ड में भी उस तरह के स्कोर्स अगर नहीं आ रहे, इवन दो आई डोंट नो, टास्मेनिया रियली नियरली चेस डाउन व्हाट 440 odd against South Australia. Did you see the last ball? The run out, Riley Meredith. It's crazy. और draw हो सकता था। Draw हो सकता था। हाँ। That was last ball of the match. It was like comedy. But yeah, I mean, look, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो देगा। ही इज अ बिग प्लेयर, ही इज द कैप्टन, ही इज गॉट टू पुट हिज हैंड अप एंड से कि मैं रन्स करके दिखाता हूं। यार मुझे मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है मुझे बहुत Do मुश्किल। you think even 150s in there in the kitty? Maybe one. Maybe one. Maybe I'm going to give him a couple of 50s, man. Yeah. I personally think India has one more test win in them at the minimum. लेकिन मैं ये भी बता in the दूं, series. उसे फिर ओपन आना पड़ना। मुझे भी लगता है कि अब ओपन ही आएगा। आएगा, अब ओपन है। हाँ, क्योंकि अब वो कहेगा कि चलो यार, we tried that, it didn't it work. didn't work. I scored 9 runs in 2 innings. But यार देखो, कमिंस वाली बॉल तो कम ही बैट खेल पाते। That was a peach. You can't be playing that top of off वाली delivery. He's not the first batter to get out that way. बड़े लोगों को कमिंस ने इतना जलील किया। रूट भी गया हाँ। उस तरह, अपना बॉबी भी गया। But he did look विलियमसन भी गया। He did look out of sorts. He did. इस तरह नहीं लग रहा था, कंफर्टेबली लग रहा लग ही नहीं रहा था कि ये रोहित शर्मा है, ब्रो। looked very dodgy. at the Honestly, ये crease. रोहित शर्मा नहीं लग रहा। And I feel that India, if they are to win this series somehow, then Rohit Sharma will have to perform. At the top. और पता है इस सीरीज के बाद वो वाला क्वेश्चन मार्क भी रेज हो जाएगा कि अच्छा जी, अब नेक्स्ट इंग्लैंड जाना है, क्या करना है आपने? What is the ploy over here? What's the move? Who's captaining India? Is Jasprit Bumrah the new Indian Test captain? What's happening? यार बहुत मसला है। मसलूसेज आई हैं, मसलूसियां। आई थिंक ये सब कुछ जो है ना खत्म हो जाएगा, ये कैप्टनसी डिबेट, इफ दे मेक इट टू द फाइनल एंड विन इट। I mean, they still could do that. I'm not going to completely write them off. मैं तुम्हें कह रहा हूँ बीबी कि मेलबर्न टेस्ट जो है MCG वाला, that's going to decide the series for me, because I honestly feel that with India spinners, Sydney is going to be tough for ये हमने Australia. पहले भी बोला था। जो मैंने 4-1 बोला था वो सिडनी वाला मैच अच्छा। बोला था, ये पर्थ वाला नहीं बोला था। But you know, Strymite Yeah. is in, you know,
अब कॉन्फिडेंट हो गए, वो मोमेंटम आ गया उनके पास। एंड लेकिन तुझे पता है वो भी तपे हुए हैं, उनको भी जीतनी है सीरीज। काफी प्लेयर हैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम में जो नहीं जीते, जो कभी इंडिया को घर पे हरा ही नहीं सके टेस्ट सीरीज में, उनको हराना है। अच्छा, मजे की बात ये है ना कि I won't look too much into this as well as an Australian or an Indian side. Try and क्योंकि रेड बॉल से आप पिंक बॉल पे शिफ्ट हुए और अब वापस रेड बॉल पे। बिल्कुल, और ये बड़ी जबरदस्त बात की है तुमने। बट सादी, Gabba equals bounce, and I know Australia has lost 2 test matches in quick succession over here. एक वो पंत और गिल वाला, which decided the previous Border Gavaskar trophy, and then the Shamar Joseph. Oh my God. That was also a pink ball game, by the way. So I mean, it's not like Australia will win this for sure, but I just have them as winners for this one. But you never know if even though originally अगर आप preview में जाओ तो I had India winners at the Gabba, I think, or I had a 50-50 toss up in that game. यार बुमराह बड़ा की होगा, पता है शामी वापस आ रहा होता ना तो फिर तो मैं इंडिया को ज्यादा चांस देता। और बुमराह की फिटनेस के मसले आ गए हैं। सिराज, honestly it's a mental thing for him now. How does he come back from this? Because honestly I thought he was bowling well, right? So that's not an issue. His bowling isn't an issue. He looks in rhythm. It's the mental game. Can he overcome all of that? क्योंकि जो बू तो हुआ है, और पता है इसमें सॉरी एक और एंगल है, ट्रेविस हेड वर्सेस सिराज में, जो कि सिराज अगर लाइक यू नो आपको पता हो कि अगला होम टाउन हीरो है साउथ ऑस्ट्रेलिया, अगर आप उससे पंगा लोगे जानी, फिर तो आपको बू करेंगे वो। फिर तो वो दैट काइंड ऑफ कम्स विद द टेरिटरी एज वेल। एंड वो बूज इतने लाउड थे, रिकॉर्ड ऑडियंसेस थी भाई, पता नहीं 51,000 पीपल इन द क्राउड। अमेजिंग क्राउड बाय द वे, एंड सच अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। एडलेड ओवल तो खूबसूरती है, सूरत, मतलब पूरे ऊपर वो शेड्स भी लगे हुए हैं, प्यारा, मजा आया। या मजेज़, बहुत ही कोई मजे का टेस्ट मैच मज्जू। Even though it was kind of one-sided, but the fact that the series is, you know, viewing experience बहुत अच्छा। हाँ, और आप तो नहीं, खैर अगर आप इंडियन सपोर्टर हो, ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर हो, आप चाहोगे अपनी आपकी टीम जीते, मगर फ्रॉम समवन्स पर्सपेक्टिव हु कवर्स स्पोर्ट, इट इज अ लॉट ऑफ फन व्हेन इट्स इवन स्टीवंस, यू नो, एंड इट कुड गो एनीवेयर। वही तो मजा है, उसका बहुत मजा आता है। हमारे लिए बहुत वो हो जाता है, देखो 1-1 हो गया, 1-1 हो गया, तो there's a lot to talk about, there's a lot to contemplate on, and more hype। और अब तो खैर फड्डे भी हो गए, तो इवन मोर हाइप। मगर खैर पता है फड्डे किन के साथ नहीं होते, हमारे जानीज के साथ नहीं होते, और हमारे जो हैं ओरिजिनल्स वाले बॉयज, उनके साथ भी नहीं होते, ओरिजिनल्स के साथ भी नहीं, जानीज पे आते हैं। सेगमेंट बहुत अच्छा निकाला लेकिन ये करना मैं लास्ट टाइम भूल गया था। theoriginals.com.pk, ये जूता देख रहे हो विराम, ओरिजिनल्स, खूबसूरत तरीन जूता, शू, और ये आप खरीद तो सकते हो एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। वो आपको सारी डिटेल्स बताएगा, बट जस्ट टू talk a bit about our sponsors. The Originals, what they do is that they take pre-loved shoes, not used, not second-hand, pre-loved, जिन जूतों को थोड़ा सा प्यार पहले मिला हुआ है, थोड़ा सा ही, ज्यादा यूज नहीं है, then they refurbish those shoes and then they sell them at a discounted price. आपको you know budget prices पे Nike के जूते मिल रहे हैं, जो कि इस इकोनॉमी में पाकिस्तान में एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। 20-25 हजार का जूता आजकल लिया नहीं जाता भाई। एक तो वैसे ही वो डिस्काउंटेड प्राइसेस, और उसके ऊपर प्रो स्पोर्ट्स की तरफ से 10% डिस्काउंट और हेवी। So log on to theoriginals.com.pk, और जब जूता खरीदने जाओगे तो वहां पे साइड पे डिस्काउंट कोड होगा, वहां पे लिख दो Pro Sports 10, you get a 10% डिस्काउंट। ये सामने लगा दे सादी, ताकि लोगों को नजर आ जाए। लगा दिया होगा अली, लगा दी भाई। 10% डिस्काउंट आपको फर्दर भी मिलेगा हमारे कोड के साथ। एंड या आई लव स्मॉल बिजनेसेस, आई लव यू नो क्या ambitious startups, that's exactly what these guys are doing, and I wish them all the best। और जाओ यार जूते शूते खरीदो, आप जूते खरीदोगे तो वो हमें और शायद स्पॉन्सर कर दें। उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, आपको जूता मिल जाएगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे, हमें शायद और स्पॉन्सर। मेरे ख्याल से अगर वो जूता छुपाई टाइप जो चुराई चीज होती है मेरी शादी पे, अगर बहुत ही महंगा दे रहे तो मैं बोलूंगा यार आप जूता रखो, मैं ओरिजिनल से जूता खरीद लेता हूँ। ये तो प्रॉपर मार्केटर हो। वैसे इट इज अ करियर दैट आई कुड हैव यू नो गॉन फॉर। अच्छा, आप लोग हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं। डिस्कॉर्ड में एक चैनल बनाया हुआ है हमने, जानी ऑफ द पॉडकास्ट। पूरा सर्वर जो है प्रो स्पोर्ट्स इज ओपन फॉर ऑल, बट दिस स्पेसिफिक चैनल इज फॉर आवर जानीज, जिसके 2-3-4 तरीके हैं बनने के। सबसे पहला है पेट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा ईजी पैसा है, 031936022545 इज द नंबर। 1500 पर मंथ पे आपको 1 महीने के लिए ऑब्वियसली उस चैट में ऐड कर देंगे, जहाँ पे बेराम मेरे से और हर एक से आप बातें कर सकते हो। आजकल तो बहुत बातें हो रही हैं, इट्स लिट दीस डेज। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, अगर इजी पैसा नहीं है आपके पास तो वो भी ले सकते हैं आप मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। बेराम को ना करना, मुझे ना करना, मैं वहाँ पे डिटेल्स दे दूंगा। 1500 पर मंथ यूर इन। उसके अलावा अगर बेराम ये भी नहीं है इनके पास, इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड स्टिल डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग, तो यार मैं और साथ इस्लामाबाद में रहते हैं और
E11-3 वाला जो मरकज है ना मेन, उसके अंदर हमारा ऑफिस भी और स्टूडियो भी है। आगे मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे, और हम लोग आपको महीने के लिए जानी बना देंगे। And I mean, there are other ways as well. If you buy us an authentic sports jersey, बस Pakistan cricket की now, because those are readily available. Or knock off now. Authentic sports jersey, any sport, any team, whatever, domestic, international, doesn't matter. आपको per jersey 6 months के लिए जानी बना देंगे. And I highly encourage you guys to become a Jani of the podcast, because we're trying to enrich your sport watching experience through the podcast and the chat. But we want you to enrich ours as well. We're not know-it-alls. We're students of sport. आकर हमारे साथ debate करो तमीज के दायरे में. तमीज के दायरे में गालियां नहीं देनी, no abuse, no racism, no misogyny, no discrimination, and it doesn't matter who you are and where you come from. Religion, country, color of skin, caste, creed, race doesn't matter to us. We are an inclusive community who are promoting intelligent cricket discourse. और यार ये जो पैसे हैं मैं और साथ पॉकेट नहीं करते, हमारी जेब में नहीं जाते. These funds go towards क्या काश होते या हम तो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास ये पैसे नहीं आते. These funds directly go towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is a financial success, we can bring you even more grade A sports content to your screens. और यार गलतियां हमसे होंगी, हम हमेशा ओनरशिप लेंगे इसी शो पे आकर, अपोलोजाइज भी करेंगे, विल टेक ओनरशिप. आप भी हमें अकाउंटेबल रखो, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं. मगर एक प्रॉमिस आपको ये है कि जहाँ तक होमवर्क, तैयारी और प्रिपरेशन की बात है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और कोई कसर नहीं छोड़नी हमने शादी. और क्या कहते तू हैशटैग सीधा टेक ओवर. या 2 सालों में जब प्रो स्पोर्ट्स बहुत ऊपर पहुंचा होगा ना, तो यू विल बी प्राउड टू बी अ पायनियरिंग मेंबर ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि हम ये सेंसेशनलिज्म और मसालादार खबरों से दूर जा रहे हैं. नो मसाला बेस, नो मसाला बे. हम ये इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स को लाना चाह रहे हैं या प्रमोट करना चाह रहे हैं. एंड वी वांट टू चेंज द लैंडस्केप of sports coverage in Pakistan. So become a part of that journey and become a Jani. या तो अगर आप स्पेन में रहते हो तो हानी, और अगर आप लैटिन अमेरिका में रहते हो तो यानी. Yes, it's up to you, man. कहीं से भी हो, कोई मसला नहीं. बल्कि we have a couple of Indians already. We have a Pakistani Hindu. We've got some academia से कुछ लोग हैं, कुछ professors भी हैं. उसने एक डॉक्टर आया है, Rizwan, I think, who's got a sick ass accent. अमरीकी है वो. Faizan has a proper podcaster voice. फैजान अनवर. Yeah. So I mean, come and become a Jani, man. हम तो वेट कर रहे हैं आपका. डॉक्टर से मुझे याद है, वेंकटेश आयर इज gonna be a doctor soon. है? PhD कर रहा है बॉय. वेंकी यार बड़ा ऑलराउंडर निकला. वेंकी ने बोले कि क्रिकेट में 60 तक तो नहीं खेल सकता ना, मुझे बैकअप भी तो चाहिए कुछ. यार क्या बंदा है, मैं तो फैन हो गया वेंकी. फाइनेंस में PhD कर रहे वेंकी. और भी कुछ लोगों के पास डिग्रीज है ना. Isn't अनिल कुंबले an engineer? Probably. Yeah, I think so. NED गया था सईद अनवर. मिसबा उल हक as an MBA. और भी हैं यार. there are few English cricketers जिनका एक प्रोग्राम था, साथ पढ़ाई करेंगे, साथ खेलेंगे. That's lovely. और वेंकी पता नहीं इस वक्त क्या कप्तानी रहाने कर रहा है. नहीं, कौन है पता नहीं अभी. मुझे तो मैं तो वेंकी को बनाता. I think उसी को कर रहे हैं. लैंकी वेंकी, क्योंकि श्रेयस भी गया, नीतीश राणा भी गया. तो वैसे पता है बेचारा अच्छा नहीं खेला इस मैच में, मगर अब उसने ड्रॉप हो जाना है जहां पे गैबा की सरफेस शायद उसको सूट करनी थी. हर्षित राणा को. हर्षित राणा की मजा नहीं आया. राणा नहीं, हर्षित राणा कहना जरूरी है. राणा. मिर्जापुर नहीं देखा? नहीं देखा. कितनी दफा बताओ. उसके अंदर वो सलोनी होती है ना सीजन 3 में, महबूबा, वो कहता है सलोनी. मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ. रति शंकर शुक्ला. अच्छा, राणे का मजा नहीं आया यार. राणे का मजा नहीं आया, मगर मैं वही कह रहा हूँ कि अब उसने ड्रॉप हो जाना है, whereas he could have probably gotten a lot of purchase at the Gabba. I think नहीं होगा. कौन यार, he gets good carry. कौन खेलेगा? And you know he was cranking it up, son. He was bowling 140 plus. 140 plus. Yeah, तो मुझे अभी भी पसंद है वो. अभी भी का क्या मतलब है? I don't think that, like, I think they should persist with him, खास तौर पे जब शामी है ही नहीं. मुझे लगता है वही खेलेगा. नहीं, मुझे लगता है they're going to go for Prasidh Krishna. अच्छा. Yeah, because they'll need a bouncer bowler. He's a tall guy. I'm not saying he is the best thing since sliced bread, but they might want to try him over here. They have missed an opportunity with Akashdeep. पिंक बॉल के साथ उसको खिला सकते थे यार. वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जरूर है, मगर आई डू फील that India will be tempted to go for Krishna over Rana, and he will be the third seamer, whereas I feel like यहाँ पे बेचारे ने एक भी विकेट ले ली. एक नहीं, चलो 2-3 विकेटें ले ली होती तो इसका सीन बन जाता. कैच भी ड्रॉप हुआ था ना इसकी. कैच भी इसका, हाँ, आई थिंक इसकी बॉलिंग पे ड्रॉप हुआ था. इसकी बॉलिंग. आर यू श्योर? नहीं हुआ. आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लग रहा हुआ था यार. वो वाला मिक्सवीनी वाला तो बुमराह की बॉलिंग पे ड्रॉप हुआ था. एक हुआ जो पंत ने छोड़ा है. कोई ऊपर से निकली थी. अश्विन की बॉलिंग पे हेड ड्रॉप. आई थिंक दैट्स इट. इंडिया के और ड्रॉप्स नहीं थे. Whereas
I know this is not the conversation we were supposed to have, but if you look at the missed chances in this game, हाँ. सिराज का ड्रॉप ऑफ हेड Yeah. और पंत का ड्रॉप ऑफ मिक्सुइनी, वो तो चलो एक तरफ रख दो, ठीक है, और इंडिया को वो मुफ्त की विकेट भी मिली थी, याद है? मिच मार्श never Mitch edged Marsh, it, yeah. but he was convinced that he has and he never reviewed it and he left. तो बहुत जहाँ weird था. अश्विन की विकेट अगर खा ली सिराज के ड्रॉप ने तो उसको एक मुफ्त में भी मिली. हाँ. तो ये तो चलो इंडिया के थे ना चांसेस, सिराज और पंत वाले ड्रॉप्स. अगर तुम ऑस्ट्रेलिया की गिनना शुरू करो, सबसे पहले ही मैच अभी शुरू हुआ है, केएल आउट ऑन अ नो बॉल, Yeah. ठीक है, स्कॉटी बोलर के खिलाफ. There was nothing on the snickometer, but KL had walked. So they wouldn't have reviewed that either. Similar story हो जानी थी. और फिर यार उस्मान ख्वाजा ने ड्रॉप भी कर दिया. Yeah. मुश्किल कैच था, one-handed take, but ख्वाजा has been dropping a lot of catches. A lot of. Yeah. हर इनिंग्स में, पहली 3 इनिंग्स में ड्रॉप किया उसने. पाकिस्तानी हेरिटेज दिखाता है ना. पाकिस्तानी हेरिटेज से दिखाना जरूरी है. मैक्सवेनी ने ड्रॉप किया था. McSweeney ने ड्रॉप किया, even though he took a really good one as Really well. good one, हाँ. गली में लिया था, but he also dropped a catch. उसके बाद यार स्टीव स्मिथ dropped one. एक ट्रेविस हेड का हाफ चांस था जो वो पहुंच ही रहा था, वो उड़ता उड़ता गया था. नितिश राणा का हाफ चांस था, वो ड्रॉप हो गया था. And then Alex Carey Yeah. dropped one behind the stump. So ऑस्ट्रेलिया के ये तो 5 कैच ड्रॉप गिना दिए आपको, एक नो बॉल में विकेट, और फिर वो स्कॉटी बोलैंड हैड नितिश रेड्डी LBW for a duck. हाँ, और रिव्यू नहीं किया. They thought there was an inside edge, but it had clipped both pads and it was stone dead. हाँ. तो वो आपने रिव्यू भी नहीं किया. इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया इतना कन्विंसिंगली जीती है, like it was so one-sided and they created more chances, right? You looked at हाँ. Australia bowling and you're like, yeah, चांस तो आएगा, हाँ. ये तो चांस निकालते रहेंगे. So that's what it comes down to. I feel like वही when you're indexing dropped catches, you have to take into account कि आपके chances कितने create हो रहे थे. अगर मैं अब सादी टेस्ट मैच के 26 चांस क्रिएट कर रहा हूँ, 6 ड्रॉप भी हो जाए, 20 तो ले ली. 20 तो ले ली ना. ये बात सारी यहाँ पे आ जाती है. सो इन अ वियर्ड वे इंडिया's dropped chances, even though Cost they them were more. few or far fewer than Australia, they cost them a whole lot more. So that was an interesting takeaway. And I don't know about you, but I feel like आजकल तो बहुत कैच छूटते हैं यार. पता नहीं. कैच ऐसे ड्रॉप हो रहे थे, मैंने कभी जिंदगी में इतने कैच ड्रॉप होते हुए देखे जितने अब होते हैं. मे बी सम ऑफ दैट हैज टू डू विद हाउ क्रिकेट हैज गॉटन अ लॉट मोर अग्रेसिव. बैटर्स प्ले देयर शॉट्स, तो ज्यादा चांस निकलते हैं ना. फिर चांस तो निकलते हैं, लेकिन कैच भी तो ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं. कैच ज्यादा इसलिए ड्रॉप हो रहे हैं कि चांस ज्यादा निकल रहे हैं, आई थिंक. I don't know. But if I think of the South African and Australian teams of old, and even New Zealand, throw New Zealand and Sri Lanka, we forget how good a fielding side Sri Lanka used to be. नहीं छोड़ते थे. नहीं छोड़ते थे. कैच ही नहीं छोड़ते थे. बिल्कुल नहीं छोड़ते थे. तुम्हें याद है दिलशान वाली श्रीलंका? हाँ. खतरनाक फील्डिंग टीम भाई. मतलब अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो सीन फर्क हो गया, but then again, you don't get to see draws anymore in Test cricket. No. There's a bit of that as well, and of course, Baz क्या इस ball. पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या 3 ड्रॉज हुए हैं टोटल शायद? गिनने वो भी पे बारिश आओ. की वजह से ही हुई होंगे. एक तो बारिश वाला ड्रॉ भी हाँ. इंडिया जीत गई थी, बांग्लादेश वाला मैच, हाँ. याद है तुम्हें? यार पता नहीं, वो मैंने गिने draw नहीं, भी मगर अब जनरली नहीं होते. नहीं, मैं एकदम रिकॉल कर रहा हूँ पॉइंट्स टेबल, तो वहां पे मुझे लगता है 3 ड्रॉज. Draws for the most part are extinct now, and that's because people Aggressive want to हो win गए, games. हाँ. इसमें थोड़ा सा evolution भी है, ठीक है? Baseball को Baz credit- ball effect भी है इसमें कि teams go for it now, and इसमें थोड़ा सा ये भी element है कि World Test Championship points are on the line, so they actually do want to win those games. Draws से काफी नुकसान हो जाता है. But I love where Test cricket is headed, and what a year of Test cricket! What a batshit crazy year of Test कमाल. cricket! Properly on crack cocaine, this sport. Yeah. लाओ पूरा टीका शीका लगाओ, मैं डालूं या मुझे सामने रख दो पाउडर फॉर्म में, मैं खींच लूं, ऊपर गम से भी लगा दूं अपने थोड़े से. Yeah, because that's what Test cricket is. It's my drug of choice. अच्छा, और अभी तो पता नहीं और भी क्या होगा यार. अभी मैच कितने रह गए हैं इस साल? साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच होगा, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 2 टेस्ट मैच होंगे, और अभी न्यूजीलैंड और उसका इंग्लैंड का भी एक है, एंड आई थिंक जिम्बाब्वे अफगानिस्तान Boxing Day test. Yeah, so there's that as well. So lots to look forward to, man, and we absolutely adore this sport. I feel like Test cricket is the best sport in the world. It is. The overnight drama, how the conditions keep changing, and it's such a conditions-based sport. The ebbs and flows. ये लो केचेट. मैं तो भाई बहुत बड़ा fan हूँ Test cricket का, which is why I've kind of transitioned my niche as well to Test cricket now. मैं पाकिस्तान की सारी limited overs cover करता हूँ, मगर अब मैं उसके अलावा globally सिर्फ Test cricket cover करता हूँ. Because honestly, that's what I'm into. और क्या करना है यार? आप वही चीज करोगे ना जिसमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है. मैं क्या करूं bilateral सीरीज का प्रीव्यू या रिव्यू करके? पाकिस्तान में तो यार, this is a Pakistan cricket podcast, so we don't want to miss any Pakistan game. That's a bit different. But उसके अलावा we're all here for Test cricket, man. Exactly. मेरे और सादिक पर बहुत बैंडविड्थ होती तो हम और करते. हम ये बाकियों की सीरीज भी साउथ अफ्रीका श्रीलंका भी करते. देख तो रहे होते हम. इतने मजे का टेस्ट मैच हुआ. इंग्लैंड न्यूजीलैंड इतना फिट था यार. इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड भी यार कहाँ, मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम करके आए हैं. इंडिया को इंडिया में 3-0 ठोक के आए हैं, स्वीप मार के आए हैं, और अब घर पे हार रहे हैं अगेंस्ट एन इंग्लिश टीम व्हिच ऑनेस्टली हैज होल्स एज वेल. हाँ बहुत ज्यादा. या अच्छा, होल्स की बात आई. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट.
थोड़ा सा नॉट सेफ फॉर वर्क ये भी हो गया, बट देयर वाज वन मोर परफॉर्मर विद द बैट इन दिस गेम. तो होल्स की बात से क्यों रिलेट कर रहे हो सर? Strymite. Labuschagne. हाँ. Bowling Mane. Labuschagne. Bowling नहीं कराई वैसे उसने. Didn't bowl seam up in this game, but he Didn't scored need to. 64. And I think so. मैं तो पहले अपना तो बताता हूँ तुम्हें बाद में. Jared thinks he was batting better than Head because he was in more control than Head, and Marnus survived that very tricky evening session on day one. हाँ विकेट गिरनी थी. उफ, बचाया था अगर इसने. वहां पे पंत ने कैच पकड़ लिया होता ना और मार्नस आउट हो गया था, ऑस्ट्रेलिया ने लेट जाना, फारिग कर दिया था बुमराह ने. क्योंकि स्टीव स्मिथ तो कुछ नहीं कर रहा. इनहेल कर लेना था बुमराह ने उनको. ठीक है, स्टीव स्मिथ की तो बहुत फॉर्म गिर गई भाई. डू यू थिंक इट्स एज? वो जब शफल करता है वो रिएक्शन टाइम्स उस तरह की नहीं रहे, तो ही इज नॉट द सेम बैटर एनीमोर, एंड ऑल ऑफ दीस पीपल वर लाइक ओ ओपन क्यों करा रहे हो, ब्रिंग स्टीव स्मिथ बैक एट 4. बदला तो कुछ नहीं. या इफ एनीथिंग ही हैड अ फ्यू नॉक्स. याद है वो 4th इनिंग्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ तकरीबन मैच ले गया था. वही गैबर टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं. या सो स्टीव स्मिथ्स फॉर्म इज अ मेजर कंसर्न, बट ऑन मार्नस राइट लुक कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स. पिछले मैच में अगर तुम जाओ तो ये डक पे ड्रॉप हुआ है. उसके बाद इसने 50 बॉलों में 2 रन और बनाए हैं. लग रहा था जैसा इसको बैटिंग भूल गई है, बैट से बॉल लग नहीं रही. इतनी बॉलें खाई हैं इसने, इतनी he's caught so many blows. So ये मैंने कहा यार, is this the end of Marnus Labuschagne? And I like Marnus because he's a character. Character है ना. He adds some flavor to the game with all of his chirpy behavior and everything, and generally जरा eccentric किस्म का character है. So I was really happy for him that he scored the 64. Again, I feel like surviving that evening session was big. So good on him to doing that, for doing that, or on doing that. पता नहीं क्या हो गया. और फिर यार अगली morning पे आकर he looked in complete control. Proper इसने अपनी शॉटें खेली हैं. He looked like Marnus of old. He didn't look like he was like in a bubble. वो केजी नहीं हुआ था, खुल के खेल रहा था. आउट भी इसी तरह हुआ, खुल के खेलते हुए फजूल सी बॉल को नीतीश कुमार रेड्डी पे आउट हो गए हो आप. एज कर दिया आपने, which was a really good catch by यशस्वी जायसवाल का बड़ा शानदार कैच था वो. But yeah, I mean look, him coming into form is a big bonus for Australia because that top 4 is struggling. ठीक है, McSweeney got some runs, but McSweeney is not an opener and he's new. Usman Khwaja is in a bad run of form. But Khwaja चलो एंड में नॉट आउट गया, back the red inker over there might help. मतलब isn't he a Queenslander? I'm not sure. I think he is. इस्लामाबादी है यार. आई थिंक उसका चक्कर ये है कि वो था सिडनी का और फिर वो गया, मूव किया उसने फॉर क्रिकेट टू ब्रिस्बेन. अच्छा. बट एनीवे ही विल बी यूज्ड टू प्लेइंग एट द गैबा. ठीक है, सो दैट्स अ बिग वन फॉर हिम. सिडनी तो उसका फिर प्रॉपर होम ग्राउंड हो जाता है. सो उजी की फॉर्म का मसला है. मैक्सवीनी इज न्यू. होम ग्राउंड डायमंड क्रिकेट क्लब है. डायमंड क्रिकेट क्लब नहीं है उसका प्रॉपर होम ग्राउंड. वो है इमाद वसीम का प्रॉपर. नहीं इमाद वसीम का तो सेकंड होम पता है क्या तुम्हें? कार्डिफ सोफिया गार्डन्स इन वेल्स. तुम्हें याद है वो? Yeah, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर दैट मैन. I'm in love with the shape of you. But you never let me do वो ये मैंने ये बोल दिया था मैंने लफ्ज आपको पीछे से. मैंने अली को एडिटर को बोला था बीप आउट कर दे. Anyway, so Marnus getting runs is big. स्टीव स्मिथ क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं. स्टीव स्मिथ को क्या हो गया? मुझे नहीं लगता अभी वो फॉर्म में वापस आ रहा है. I honestly feel like it's one of those things where that shuffly technique used to work a certain way back in the day, where he used to be on top of those deliveries, and now he's late on the ball. Very late. Reaction times वैसे नहीं रहे वे. It is a major cause for concern for Australia. And like I said, जीत तो वो गए हैं, मगर there's still major holes. I don't know if Marnus can continue this. I hope he can because I do want him to do well. I think he will. You think? मुझे लगता है ये नॉक बहुत जरूरी था उसे वापस आने में. यार था तो अच्छा 64. It was a well constructed 64. मुझे ये बताओ, स्टीव स्मिथ अगर नहीं, स्टीव स्मिथ नाम है स्टीव स्मिथ. Yes, is Steve Smith. स्टीव स्मिथ अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, और नहीं चलता तब तक, नहीं खेलेगा. नहीं फाइनल के बाद अगले साइकिल. That's Steve Smith's decision now. नहीं, डू यू थिंक अगर तुम सिलेक्टर हो तो उसे कंटिन्यू? अगर मेरे पास बहुत प्लेयर पीछे पड़े हो सिस्टम में तो फिर मैं सोचूं. अब वो नहीं पता ना. नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया के पास. इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बेंच स्ट्रेंथ. एटलीस्ट यू नो बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स मैन, ऑनेस्टली नॉट ऑन पेपर. क्योंकि अभी उनकी बेंच ने एक मैच भी जिताया उन लोगों को. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट टीम कुत्ती है, वेरी गुड, बट बेंच स्ट्रेंथ कुत्ती नहीं है. बेंच स्ट्रेंथ काफी फारेग. और ऊपर से वही मैंने जो तुम्हें कूकाबरा की और ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की बात की थी, शील्ड क्रिकेट में बैटर्स आर्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम आउट इन द मिडिल. नोमी स्ट्रेचिंग कर रहा है साइड पे. नोमी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया. हाँ, हेवी डिस्ट्रैक्ट किया है. पहले तो नोमी ने ना, अभी सर्दी हो गई है थोड़ी सी, मगर इस लेवल की सर्दी नहीं हुई कि ऊनी टोपियां पहनने लग जाओ.
वो तो बीनी पहन कर आया हुआ था भाई। पहन कर आया। और अच्छा, इस अच्छा। नोमी की आज जो जैकेट है ना उसके पीछे पर भी लगे हुए, ही इज एन Wings. एंजल। नोमी यू आर माय एंजल, यू आर माय डार्लिंग एंजल। एनीवे क्या बात कर रहे थे? बेंच स्ट्रेंथ। Major holes in Australia which can be exploited by India. Still, you know, Marnus का एक ही नॉक है. हाँ. Top four still struggling. Steve Smith can't buy a run. हाँ. Mitch Marsh hasn't been informed. Not at all. Yeah. Travis Head is there, of course. And you Head know है, what? bro. Alex Carey की थोड़ी सी मुझे बुरा नहीं लगा मुझे. सही है बस. But obviously he's not an A-level player उस तरह. Proper. O-level player है. O-level player. Funny. अच्छा। Yeah. और किधर जाए हम? यार रेडी पे आओ ना। इंडिया की पूरी बैटिंग की बात कर लेते हाँ, लेकिन पहले रेडी पे आओ। या बिकॉज यू नो रेडी पे इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि उनका बेस्ट बैटर था। नॉट अ सिंगल इंडियन बैटर मैनेज टू स्कोर 50. Nitish Kumar Reddy was the pick of India's batters. He scored 42 in each innings. कुछ बहुत खूबसूरत शॉट है यार इसकी हिटिंग गेम जो है ना, पावर गेम मुझे बड़ी पसंद है. एक इसने निकल के छक्का मारा था या चौका, मुझे याद नहीं है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर. आई थिंक इट माइट हैव बीन अ 6. और फिर इसने एक रिवर्स स्कूप मारी है, आई थिंक स्कॉटी बोलैंड को. ब्रो वो रिवर्स स्कूप नहीं थी, वो रिवर्स लपेटा था। ओह अच्छा, स्कॉटी बोलैंड का एक मुझे बड़ा जबरदस्त फैक्ट याद आया. वरुण ने मुझे बताया था कि ही हैज द best average. Sorry, I've completely forgotten the stat. Nice. Let's just skip this. अली कटिंग नहीं होगी इस पॉडकास्ट में। हाँ, वो अटैकिंग डिलीवरीज पे ना उसका कोई सीन था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा. माफ कर दो, गुड एरियाज पे जाओ, उस पे बात हुई थी. अच्छा, Anyway, चलो, हाँ, रेडी. हाँ, रेडी का ये सीन था यार कि वो काउंटर अटैक अच्छा कर रहा था. मुझे उसकी कुछ शॉटें बहुत पसंद आई, लाइक द वन ओवर एक्स्ट्रा कवर एंड द रिवर्स. एक दोस्त ने कवर ड्राइव बड़ी खूबसूरत ही डाउन ऑन वन नी. वेरी वेरी अट्रैक्टिव बैट. ऊपर से यार 21 साल का. यू नो दैट, यू नो ये तो उसने अभी डेवलप होना है. एज ऑफ बैचिंग मैच्योरिटी. एज ऑफ बैटिंग मैच्योरिटी थोड़ी दूर है उसकी. ही इज यंग, ही कुड बी अ रियल एसेट फॉर इंडिया गोइंग इनटू द फ्यूचर. आई एम ऑलरेडी सोल्ड ऑन द बैटिंग बिट. आई फील लाइक इसमें बहुत टैलेंट है और ये T20s भी खेलेगा इनके लिए. बल्कि हमने देखा था किस तरह बांग्लादेश के पड़खच्चे उड़ाए थे. पड़खच्चर्स. वैसे हमने ये ट्रेविस हेड पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए था. तब मिस हो गया. लोग कहते हैं एक दफा जरूरी होता है बोलना. नहीं यार, he was brilliant in the IPL as well. Yeah. I mean, look, his bowling is still a project. You know, I feel like he needs to develop a whole lot more. Pace is not good enough. Mitch Marsh type bowler है. आप उसकी बात है 127 तक इसकी pace. ठीक है ना, अगर 6th बॉलर या 5th बॉलर. 6th अगर टेस्ट में है तो 5th बॉलर. इस तरह की कंडीशंस में अगर तो वो बन सकता है 5th बॉलर तो अच्छा हो जाएगा इसके लिए. आई डोंट थिंक ही इज देयर येट. आई थिंक दैट हिज बॉलिंग स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई एम नॉट एंटायरली सोल्ड ओवर देयर, बट ही इज 21 एंड ही कुड वर्क ऑन दैट. ब्रो अगर ये यार 135 तक ही अपनी पेस ले आता है, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे खेलना. एंड ही कैन बी अ डॉग ओवर्स बॉलर. He's 21. Yeah, he's a 21. developing cricketer. Got that tattoo with the warrior and the tiger, and he looks at himself as that warrior and the tiger, right? Ceiling बहुत high है. I think बहुत high ceiling है. Batting में तो बहुत ही high ceiling है. And look, यार, he's the only batter who's consistently scored runs for India, right? 41, 38, I would like to say, then 42, 42. Yeah. और इस मैच में भी he looked in control. ठीक है, इसको जरा नीचे क्योंकि बैटिंग करते तो आसान फेज मिलता है गेम का. But then again, bro. हाँ, आप अभी अभी आए हो. You're very new to Test cricket, and the way you've kind of taken up to it, I feel like he's a proper talent and someone that India should be really excited about. And वही मैं कहता, bowling में तो चलो work in progress, but as far as batting is concerned, I feel he's ready. He is ready. He is definitely ready. अच्छा, वरुण जो है ना वो भी हैदराबाद का. अच्छा. Nitish Kumar Reddy भी हैदराबाद का. So the correct pronunciation, if we go by Varun, is Reddy. You have to kind of d पे ना focus करना. Reddy. क्या है? Reddy. मैं जरा R ज़्यादा रोल करने लग गया हूँ. Reddy. हाँ, Reddy. Okay. Anyway, so मुझे तो पसंद है भाई. हाँ. I like myself some Nitish Kumar Reddy. Reddy नहीं है. Reddy. हाँ. पता नहीं है, वरुण बताएगा. देखता तो है वो, कोई पॉडकास्ट नहीं छोड़ता आजकल. वरुण भी Alvaconese is in हैदराबाद. बिरयानियाँ फोड़ रहा होगा मगर वेजिटेरियन है. तो मैं पता नहीं कोई आलू और अंडों के साथ बिरयानियां फोड़ रहा होगा. नहीं यार वरुण. अच्छा चलो, उस पे मैं क्या कमेंट करूं. Have fun during your vacation or whatever, वरुण. We miss you. अच्छा जी. और इंडिया की बैटिंग की बात करें तो विराट कोहली पे आते हैं. मैंने पंत की बात करनी है. क्या बंदा है वो? अब गिर के चौके मारने वाली वो क्या बंदा है यार? अच्छा, मतलब the balls on that guy.
इसके ऊपर भी लोग चढ़ गए हैं. क्यों? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही. मैं बताऊं, his keeping wasn't up to the mark. His keeping wasn't up to mark. He should have attempted that catch, head wala, and then he dropped one. एक दो उसने attempts भी सही नहीं किया. Yeah, but as far as batting is concerned, yeah, this is what you get with Rishabh Pant. He's going to play these awkward as shit shots, and that's what he's good at. He needs to continue to do that. विकेट गिरी हुई है, पहली बॉल आके उड़ा रहे हो, ठीक है, इधर चौका उधर चौका, नहीं आए रन्स, मगर तब से करता भी तो आ रहा था. कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. पिछली बीजीटी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है उसका वो हीरो है. एंड दिस इज अ गाय हु हैज कम बैक फ्रॉम इंजरी, करियर थ्रेटनिंग इंजरी. He won a T20 World Cup in which he had a role to play, proper role. The size of the cojones, bro. Size of the cojones are immeasurable. Oof. I don't know how people are slagging off Rishabh Pant, because I feel like he's still one of India's most important players. He is. After Bumrah, he is their most important player. Batting में तो for sure. नहीं आई performance. खैर है, he's not doing anything different. वो एक तो लिटरली गिर के चौका मारा उसने फाइन लेग पे, यार गिर गया था वो, और वो यही करता है. समझ नहीं आती है वो किस तरह शॉटें मारते हैं. रिवर्स भी मारी थी उसने, उसमें भी गिर गया. They're not particularly aesthetically pleasing, but he's effective. Effective है bro. और विराट कोहली का वही मसला, वही 4th to 5th stump line, sometimes 7th stump line, edges it to the slips. It's an age-old problem with Virat, and I mean he's also towards the twilight of his career. Obviously, there is a natural regression that comes with most players, most batters. 36 का हो गया, उस लेवल पे तो नहीं आप रह सकते unless you are a Misbah ul Haq or a Graham Gooch who peak late. Exactly, उनका तो Mike Hussey is another example. होते हैं ऐसे भी कुछ anomalies हैं. Gooch, Misbah and Hussey are prime examples. लेकिन throughout their careers probably सचिन ही होगा. सचिन की भी regression आई थी. Regression आई थी लेकिन इतनी massive नहीं आई थी. कोहली की तो मतलब खैर अभी शतक जड़ा है उसने पिछले मैच यार, मगर ऐसी सिचुएशन में जाकर शतक जड़ा है जहां पे कोई प्रेशर नहीं था. द गेम वाज काइंड ऑफ ऑलरेडी डन. यहां पे बहुत प्रेशर था. यहां पे प्रेशर था, एंड दोनों इनिंग्स में कोहली's runs were required. He scored what 18 runs across both innings. Not good enough from Virat. But again, before you kind of take your pitchforks out, ये सीरीज होने दो. इस सीरीज के बाद ना 5 टेस्ट के बाद बैठ के आराम से कोहली और रोहित की बात कर लेंगे. अभी तो उन लोगों ने खेलना है ना, और सबकी बात करेंगे. हाँ, so I don't think anyone should jump the gun when it comes to players like Virat and Rohit. But वो वाला इशू तो है 4th 5th स्टंप लाइन वाला भाई. और अगर मैं ऑपोजिशन हूं तो मैं उसको उसी तरह टारगेट करूंगा आउट में. और यार वो कभी कभार ना आधा कमिट करता है, and then he's kind of sort of leaving, but it catches the edge and it flies to a slip. I've seen this a lot of times with Virat, right? And he was quite disappointed as well. बीच में थोड़ा एनिमेटेड भी हुआ था, क्राउड के साथ थोड़ा फड्डा लिया था कोहली ने. बट वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम विराट. वी एक्सपेक्ट हिज जूसेस टू बी फ्लोइंग, एंड आई लाइक दैट. आई वांट हिम टू काइंड ऑफ गिव इट बैक टू एवरीवन, बिकॉज़ वो उसकी फितरत में है. ही इज अ वेरी गुड ब्लोक, बट व्हेन इट कम्स ऑन द फील्ड ही कैन बी अ बिट ऑफ अ बास्टर्ड, एंड आई लाइक दैट बास्टर्ड. You know, सनी जी उस दिन बता रहे थे विव के साथ, कहता है ऑफ द फील्ड ही वाज अ जेंटलमैन, ऑन द फील्ड ही वाज अ बास्टर्ड. एंड दैट्स गुड. दैट्स हाउ आई वुड बी एज अ क्रिकेटर इफ आई एवर वाज दैट गुड. क्योंकि यार शादी से पूछ लो, आई एम अ रियल पेन इन द एस व्हेन आई एम इन द ऑपोजिशन टीम. ऑफ द फील्ड भी ऑफ द फील्ड मजाक कर रहा है. क्या हो गया? मजाक कर रहा हूँ यार. मजाक कर रहे थे तुम. मजाक. अच्छा यार, और कौन से बैटर्स हैं? गिल वाज लुकिंग डिसेंट. गिल का पहला मैच था, he got starts. I'm not going to like criticize him. He was looking decent. एक स्टैट दिया हुआ था Broken Cricket Dreams blog ने. I think I like that page. I really like that guy's long blogs as well. उसने एक बड़ा बल्कि शानदार economics of the county championship पे पीस लिखा हुआ है. Guys should go read that. It will tell you कि Yorkshire कितने पानी में है. So yeah, I love that guy. और also The Best of Cricket is a Substack thing जो हमारे नए sponsors है good areas पे. तारूतर मल्होत्रा इधर भी बन जाओ is the main man. वो हमारी भी चीजें कर देता होता है. प्रो स्पोर्ट्स की भी अक्सर अपने वो बेसिकली डेली आपको देता है रिपोर्ट ऑफ ऑल द ग्रेट कंटेंट. नहीं स्पॉन्सर बन जाओ. आपको जाकर सब्सक्राइब करना चाहिए if you're a cricket nerd and you want to know all the latest stuff. I've seen this Substack. Yeah, मुझे याद आ गया. तारूतर वैसे भी I hope I'm pronouncing your name correctly, bro. But I think he's a very personable person. I've spoken to him a couple of times. मुझे बड़ा पसंद है. आप सबको जाकर उसके Substack पे सब्सक्राइब करना चाहिए. तो खैर Broken Cricket Dreams blog ने लगाया हुआ था how Gill has a lot of dismissals in those 20s and 30s वाले areas. So he does have a penchant to get starts and not convert them, but he's also young. He's very young. अभी बहुत टाइम है गिल के पास, और मेरे ख्याल से वो हल्का सा ही नीचे जायसवाल से है, वो भी एस टियर. दोनों टॉप टियर. और जहां तक यशस्वी की बात है, आई मीन क्या कहते हैं, स्टार्क वाज प्रॉब्ली क्विक इनफ दिस टाइम. इस दफा वाजंट टू स्लो. उस पे भी लोगों को मसले हुए. मुझे काफी पड़ी हैं उस पे गालियां. अच्छा तुम्हें तो पड़ी हैं, तुम्हें तो हर चीज पे पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं. काफी ज्यादा फैंस, अब पता चला यशस्वी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था. क्या
इसमें मसला है भाई. I don't think there was anything wrong with what Yashasvi said when he was like, that's not quick enough or what? It's too slow, bro. It's coming too slow. It's coming too slow, bro. I mean, again, I feel like this brings flavor to the game, and I like this sort of stuff. A little back and forth. It's just friendly banter. और मैंने भी जो ट्वीट किया था, स्टार्क भी हंस रहा था. स्टार्क भी हंस रहा था, राइट? क्योंकि स्टार्क ने शुरू की थी वो चीज हर्षित राणा के साथ. I also tweeted in that same friendly banter type of tenor. उस पे भी लोग तब कहें कि ओ यशस्वी को ये नहीं कहना चाहिए था. यार ठीक है, बड़ी सीरीज पड़ी है आगे और यशस्वी जायसवाल एस टियर टैलेंट है. I would be really surprised if he doesn't score more runs in this series. He will. इस मैच में नहीं आए, चलो गारंटी है करेगा. डक और 24 मारा और I don't even blame him for the first delivery. इतनी What a वो pitch. ये पड़ी है, वो लेग स्टंप पे आकर मिडिल स्टंप पे पहले से ही वो स्विंग हुई है, फिर ठक. ओह, you would struggle, any batter would struggle to face that delivery first up. Quite similar to the Rory Burns dismissal. वो तो खैर बोल्ड हो गया था. वो भी अजीब कोई फिजिटी कैरेक्टर था. बर्न्स पता नहीं कहाँ से आया था. बाल अच्छे थे उसके. हाँ, बाल फिट थे. And he's a very successful captain at Surrey. Yeah, अब पता नहीं है कि नहीं है. जो बर्न्स मुझे याद आ गया. जो बर्न्स इटली का कैप्टन बन गया. Australia could do with Joe Burns right now, couldn't they? और Cammy Bancroft. नहीं ठीक है. इटली भी थोड़ा ऊपर है. इटली चलो हाँ. कह रहा था कि you know I want to give back to the country that I have an association with or something like that. My ancestors came from here, whatever. But Joe Burns could have been handy. अच्छा. Anyway, बात क्या कर रहे थे हम यार? हम इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे थे. गिल हो गया था. पंत को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा. और जायसवाल यार चलो सही है, कभी फेल भी तो होना है. राहुल भी looked decent in the first innings, but you know that's about it. फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा लकी भी हुआ है. हाँ, लकी तो हुआ. हाँ और हाँ 37. खैर उसके बाद शुरू में थोड़ा सा वो था, एक दो एजेस निकली थी उसकी, लेकिन उसके बाद ठीक लग रहा था, लेकिन फिर then gave away his wicket. And then he got bounced out in the second innings. I mean, look, KL Rahul probably goes back to 6. Rohit comes up. Any other changes you would make in this? बैटिंग पूरी कवर कर ली हमने. हाँ, पूरी कवर कर ली. क्योंकि पंत को मैं नहीं, I'm not going to criticize him. That's how he plays. I want him to play that way. हाँ. और कोई चेंजेस करोगे बैटिंग यूनिट में? गैबा टेस्ट आ रहा है. सही है. गैबा में कोई बैटिंग यूनिट की पहले बात करो. इंडिया. हाँ, बस ये पोजीशन चेंज. रोहित एंड अपना जायसवाल ओपन. Gill first drop, Kohli, then you've got Pant, and then Rahul, then Reddy. A better question over here is that which spinner plays? Ashwin wasn't that bad. निकाल ली थी हेड की विकेट, कैच नहीं हुआ. ठीक है, अश्विन ही खेलेगा मेरी तरफ से. मुझे लगता है कि वॉशिंगटन खेलना चाहिए. मुझे लगता है अश्विन खेलेगा. Tall spinner can get some bounce at the Gabba. I feel like Washington is the safest pick, but you know what? My gut says that they'll go with Ravi Jadeja. इधर तो ना खिला यार. अगर जडेजा आपका 8 पे आ रहा हो, नहीं, अगर बैटिंग लंबी करनी है ना तो जडेजा इज प्रॉब्ली योर बेस्ट बेट. बैटिंग लंबी करनी है तो जडेजा, लेकिन फिर बॉलिंग लाइट हो जाती है. तो मैं तो वॉशी को खिलाऊं, अति सुंदर को, क्योंकि यार गैबा में बाउंस तो मिलेगा और नेथन लायन को भी अगर बाउंस मिलता तो यार वॉशिंगटन तो ठीक ठाक लंबा है. खैर लंबा तो अश्विन भी है. हाँ, ही इज अ प्रीटी टॉल ब्लोक. आई डोंट नो, लेकिन वॉशिंगटन की बैटिंग भी एज दी जाती है. आई फील लाइक वॉशिंगटन और अश्विन में ज्यादा डिसीजन है कन्वेंशनली, जो कन्वेंशनल विजडम. रवि ना खेले. आई डोंट थिंक जडेजा इधर. दे माइट बी टेम्प्टेड टू प्ले जडेजा ब्रो. सिडनी में खिलाओ यार उसे. सिडनी में तो खेलेगा. इधर ना, शायद मेलबर्न में भी खेलेगा. इधर ना खिलाओ. Yeah, I mean I wouldn't play him, but I mean I wouldn't be surprised if they do, because India क्योंकि बैटिंग नहीं कर पा रहा. अब अगर आप सोचो सिर्फ टॉप स्कोरर्स कौन है इंडिया के? जायसवाल है, 1 इनिंग्स का स्कोर है. 2 तो डक्स हैं. रेडी, कोहली ने 100 मारा. रेडी तो मैंने कहा ना कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है. रेडी को एक तरफ कर दो. अच्छा. कोहली का 1 इनिंग्स में स्कोर है सारा. ठीक है, और उसके बाद अपना केएल राहुल एक तरह से 1 इनिंग्स में स्कोर है, मगर ही इज बीन अ बिट मोर कंसिस्टेंट. इंडिया हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट विद द बैट. दिस इज नॉट गोइंग टू कट इट. देयर बैटर्स विल हैव टू चिप इन मोर रेगुलरली, एंड इफ यू आर नॉट इवन एबल टू, लाइक if you haven't crossed 200 in 3 out of 4 innings, then your batting is the reason why the series is at 1-1. Yeah. Straight up. सही बात. No other reason. कप्तानी, bowling, शोलिंग सब एक तरफ. जब तक आप रन्स नहीं करोगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 300, तो सीन बैड ही है यार आपका. और ऑस्ट्रेलिया भी इस तरह की टीम नहीं जो रोज रोज 300 करेगी. ऑस्ट्रेलिया भी बीच में फारिग होगी, उनकी बैटिंग लीकी है थोड़ी सी, अच्छी खासी लीकी है. सो आई डोंट थिंक इंडिया आर आउट ऑफ दिस येट, इवन दो साद डजंट हैव देम एज विनर्स फॉर अनदर सिंगल टेस्ट मैच. आई थिंक दे हैव अनदर, एटलीस्ट अनदर टेस्ट मैच. देखो, मैंने बिफोर द सीरीज प्रेडिक्शन की थी, एंड आई एम गोना स्टिक टू इट. ज्यादा मसला पता है क्या है? शामी स्टिल अनफिट. वो मसला. इफ ही केम बैक फॉर द गैबा टेस्ट, आई वुड हैव सेड कि इंडिया कैन बाउंस बैक. अच्छा, मुझे बताओ, bowling Bumrah if he's fit. Hopefully he will be fit, and they're going to do everything they possibly can to make sure that he's fit.
देन सिराज खेलेगा. और फिर तुम कह रहे हो प्रासित खेलेगा इंस्टेड ऑफ राणा. I think Prasid खेलेगा because of or instead of Rana because he'll be a bouncer bowler at the Gabba. I think they should stick with Rana. I wouldn't mind if they stick with Rama. I feel like बस हो गया. Yeah, I wouldn't mind if they do stick with him. I mean, young player है, pace तो अच्छी कराई. Youngster. I thought his pace was up. पिछले मैच से ज़्यादा तेज bowling कराई है उसने. He's shown us that he can teeter along the or hover along the lines of express pace. And I mean, अब आपने confidence देनी है तो सही तरह दो. 2 से Gabba टेस्ट. फिर देखी जाएगी. कृष्णा बाद में भी आ सकता है. आकाशदीप से ऊपर तो वैसे कृष्णा ही खेलेगा because he's tall. I feel like he might. स्किडी भी है थोड़ा. Yeah, थोड़ा सा है. ऑस्ट्रेलिया पे आए. इंडिया की तो ये बातें हो गई सारी. ऑस्ट्रेलिया पे I think Nathan Lyon plays. 100%. Got a terrific record at the Gabba. I don't think they'll make any change except for Scotty Boland out and Hoff coming in. Probably. I think Australia will be tempted to go with 4-seamers, but it would be a mistake not to play Nathan Lyon at the Nathan Gabba. Lyon तो खेलेगा bro. क्योंकि यहाँ पे उसको bounce मिलता है, उसका बहुत fantastic record है, and I mean he's still Nathan Lyon, right? And he has a terrific bowling record in Australia as well. और ये पिंक बॉल भी थी, याद रखो. वापस हम रेड बॉल पे आ रहे हैं, और कभी ना कभी तो इंडिया ने भी बेहतर बैटिंग करनी है, तो Lyon will come into the game. So yeah, I think Australia otherwise will go unchanged. और क्या ही कर सकते हैं? Hazelwood coming in for bowling. हाँ, Hazelwood comes in for Scotty Boland probably. But yeah, MCG में maybe you'll see Scotty Boland again. Maybe. Because that's where we need a statue, right? वहीं पे तो उसने वो bowling की थी सारी. Yeah, look, it's exciting. The series is on a knife's edge. The World Test Championship is on a It nice really edge, is. man. If anything, South Africa the most comfortable team right now. Right now. और क्योंकि आगे पाकिस्तान आ रही है. पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान को तो मतलब हरा ही देना चाहिए. I mean 2-0 पढ़ना चाहिए in theory. हाँ, मगर एक टेस्ट वो ड्रॉप कर सकते हैं because even though the batting is done well, they're still inexperienced, right? हाँ, हमारी भी तो I mean element है. किस पे बैट लगा? Probably Mohammad Abbas is our best bowler over there. नसीम है. अब्बास देखना. आई एम रियली कीन टू वॉच अब्बास, राइट? बट एनीवे, मजा आएगा. देखते हैं कौन क्वालिफाई करता है, कौन नहीं करता. अभी तीसरा टेस्ट फॉरन स्टार्ट होने वाला. Literally next week we'll be recording a review for that. But yeah, let us know आप क्या changes करो comment section में बताओ. मुझे ये भी जरा बताओ यार comment section में कि आपके हिसाब से स्टार का प्लेयर तो मैच होना चाहिए था या हेड. और मुझे बताओ सिराज और हेड की जो टसल हुई थी उस पे अपने let us know your thoughts कि आपकी क्या राय है सिराज वर्सेस हेड पे. हमने अपनी दोनों की राय बताई है. मैंने आपको थोड़ी जायरेड की भी इनसाइट बताई है. A lot of different opinions on this one. Tubby Taylor wasn't too happy with it either. Yeah. He was like, it's not a good look or whatever. Anyway, I would love to, or both of us would love to hear from you कि आपकी क्या राय है, because I don't know, man, it really did seem like it was blown out of proportion. अच्छा, उसके अलावा हम आज ये आ जाएगी इनके पास, तो कल होपफुली पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो T20 मैच है, फर्स्ट T20, उसमें लाइव होंगे आपके साथ. Probably नहीं, definitely live. Watch along with you guys and join us and have fun, man. Yeah, तीनों T20s के लिए we plan on being live right in front of you, as we've experimented earlier as well. It's been a fun time, you know. We're really liking where this whole venture is headed. आप लोगों का प्यार है, आपकी मोहब्बत है. Without your support we're nothing. So thank you so much for watching this podcast. और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें. उसके अलावा हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon और इजी पैसा. 0319360255 इज द नंबर. हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो Spotify और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं. आजकल थोड़ा सा इशू हुआ है Spotify का, तो शायद थोड़ा सा डिले हो. पिछले भी एपिसोड अभी आने हैं उसके ऊपर. उसके अलावा यार चिल मारो, नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए प्रिपेयर करो, कमेंट्स करो, एंजॉय करो BGT को यार, सबसे इम्पोर्टेंटली. एंड विल बी बैक रिव्यूइंग दिस सीरीज अगेन व्हेन द टेस्ट मैच एट द Gabba is over. We'll see you guys next time. Australia, mate. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.